Namaskar, my dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor, to help you in the completion of your English syllabus for this session. I am taking a main course book Flamingo. We have completed first chapter, and in this video we'll cover chapter number 2, Lost Spring, written by Anis Jung. So let's start. Just have some information about the author. Lost Spring is Stories of a Stolen Childhood. This is the complete name. Lost Spring is Stories of a Stolen Childhood of chapter number 2, and it is written by Anis Jung. She was born in 1964 and she born in Rourkela. It's a place, and she spent her childhood and adolescence in Hyderabad. So this is the female writer, basically belonged to India. She received her education in Hyderabad itself and in the United States of America. Higher education she has completed from United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor. In India, she has begun the career, and this is the notable that her parents both were the writer. She has been an editor and columnist of major newspapers in India and abroad as well, and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of a Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and the tradition which condemned these children to a life of exploitation. So this chapter is basically taken from a book, and this is an excerpt. Excerpt is called A Part. उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो जो हमारा चैप्टर का नेम है वही उनकी बुक का नेम है, और उस बुक में से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जिसको इस चैप्टर के फॉर्म में रखा गया है. इस चैप्टर में क्या बताया गया है? द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, द अटर पॉवर्टी ऑफ द people in which they pass their life completely till death, and this is main that condemn these children to life of exploitation. These children are we can say they are the victim of this poverty, is the word of the poverty, and they are exploited in many ways. इन छोटे छोटे बच्चों को अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताना पड़ता है. जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बचपन में नहीं मिलती, आगे जाके नहीं मिलती, और पूरा जीवन अपना ये इसी तरह से गरीबी में रहकर ही बिता देते हैं. तो यही चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है, and basically she has spoken about the stolen childhood. Now, if we see the literal meaning of this, then lost, that you have something lost, and spring is a season that is a symbol of freshness, bloomness. तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ खो गई है. क्या खो गया है? फ्रेशनेस खो गई है. किसकी खो गई है? बच्चों की, चाइल्डहुड की, बचपन की. स्टोरीज, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं. किसके बारे में? स्टोलन चाइल्डहुड. Childhood is a stage when you can be seen with your total innocence, the beauty and the real you. ठीक है, एक ट्रुथ की जो झलक दिखती है हमको चाइल्डहुड में, वो चोरी हो गया है. किन बच्चों का? जो गरीबी में रहते हैं, और इस गरीबी की वजह से जो उनकी पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहती है, इस वजह से जो उनका बचपन है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, कुछ और होता है. और यहाँ पे अनीस जंग ने उसको बताया है स्टोलन चाइल्डहुड, यानी उनका बचपन जो है वो चुरा लिया गया है. अब देखते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. द ऑथर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ इंटरेक्शन with the children from deprived backgrounds. She describes their poor condition and life in an interesting manner, and the story touches the reader and it's thought provoking. सो यहाँ पे बताया गया है कि इस चैप्टर में बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी उन्होंने इस बुक में, जिसमें से एक स्टोरी ली गई है जहाँ पे वो खुद इंटरेक्शन करती हैं बच्चों से, जो गरीब बच्चे होते हैं. डिप्राइव्ड इज कॉल्ड व्हेन यू आर नॉट हैविंग समथिंग दैट यू शुड, वंचित रहना किसी चीज़ से. तो वो खुद बच्चों से बात करती हैं. उसी बेस पे उन्होंने ये स्टोरीज लिखी हुई हैं. वो बताती हैं, इस चैप्टर में बताती हैं उनकी पुअर कंडीशन, किस कंडीशन में वो रहते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में बताती हैं. वो सारी चीज़ें हैं जो
एक रीडर को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज एज वेल थॉट प्रोवोकिंग. प्रोवोकिंग इज कॉल्ड व्हेन यू आर प्रोवोकिंग समथिंग, किसी चीज को उकसाना, तो आप मजबूर हो जाते हो सोचने के लिए कि यस, सो मेनी ओपन एंडेड क्वेश्चन शी लेफ्ट आफ्टर द चैप्टर, आफ्टर द स्टोरी, दैट यू योरसेल्फ स्टार्ट फीलिंग कि यस, वी शुड डू समथिंग टुवर्ड्स दिस. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी दैट रिमेन हिडन बाय अस. एक वो भी भाग है हमारे समाज का जिस पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, बट उनकी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही वैल्यूएबल और समान है जैसी हमारी है. तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, एज आई टोल्ड यू, इन मेन कोर्स बुक सम expressions are given in the starting of the chapter that are coming within the text, okay, at different places. So this is the main thing. All the expression that are given in the starting, I have written the meaning, and as we proceed to the chapter we will also know the same meaning. तो चलो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं. This will really help you. सबसे पहला है looking for. Looking for means try to discovering something. यहाँ पे you आ गया है, this is we, ठीक है, discovering. So discovering something, किसी चीज के बारे में पता लगाना, किसी चीज को सर्च करना, that is called here. It's a phrase that means to discover, किसी चीज के बारे में पता लगाना, ढूंढना. Next is slog their daylight hours. It means, slog their daylight hours means struggle persistently, हमेशा struggle करते रहना. Persistently is called, your struggle is continuous. Next is during the daytime, okay. Slog their daylight means they are wasting their daylights, their daytime in struggling. Persistently is called जो हमेशा बनी रहती है, उनकी स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती. नेक्स्ट इज रूफ ओवर हिज हेड. दैट मीन्स अ प्लेस टू लिव, जिसको बोलते हैं रहने के लिए छत. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स एंडलेस इम्पॉवरिशमेंट, कभी भी ना खत्म होने वाली गरीबी. डार्क हटमेंट्स इज कॉल्ड इनकैपमेंट ऑफ हर्ट्स डिवॉइड ऑफ एनी लाइट. इस तरह की हट, इस तरह के घर जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है, अंधेरे और डार्क घर होते हैं जो. इम्पोज्ड द बैगेज on a child, for the profession on the child means for the professions or force the profession. I'm so sorry, यहाँ पे FORCE है, ठीक है. force the profession, जबरदस्ती के बच्चों से कुछ काम कराना, that is called imposed the baggage on the child. so ये एक्सप्रेशन थे, ये हमारे आगे चैप्टर में भी आएंगे. चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. so from here the chapter start. This chapter is divided in two parts. ये two parts में divided. Sometime I find a rupee. This is part number 1. ये आप चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, जिसका नाम है Sometime I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, is scrounging for the gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब यहाँ पे I आया है नरेटर के लिए. This chapter is written by Anish Jung and taken from her book. तो हम बोल सकते हैं कि नरेटर is the writer. तो अनीश जंग के वर्ड हैं ये. अनीश जंग यहाँ पे बोलती हैं कि एक दिन Why do you do this? एक दिन अनीस जंग ने किससे पूछा? साहिब से. तो दो कैरेक्टर्स आ गए हमारे, एक क्या रहा नरेटर और एक रहा साहिब. उन्होंने साहिब से पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो. Whom I encounter, encounter is called मिलना, ठीक है, जिससे वो रोज सुबह मिलती थी. Scrounging for gold, scrounging is called फाइंडिंग आउट, किसी चीज के बारे में पता लगाना, कोई चीज ढूंढना, जो कि हमेशा ढूंढता रहता था. क्या? गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, जहां पे कूड़ा फेंका जाता है, ऑफ माई नेबरहुड. माई भी यहाँ पे किसके लिए आया है? राइटर के लिए आया है, जो अनीश जंग. तो अनीश जंग बोल रही है कि मेरे पड़ोस में मैं एक लड़के से रोज मिलती हूँ जिसका नाम साहिब है, और वो कुछ ना कुछ रोज गंदे कूड़े में से ढूंढता है. अब यहाँ पे गोल्ड का मतलब, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गोल्ड आउट ऑफ विच द ज्वेलरीज आर मेड. नो, यहाँ पे मेटल गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ प्रेशियस थिंग, कुछ इस तरह की अनएक्सपेक्टेड थिंग, जिससे कि जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनको बहुत खुशी होती है. मतलब कूड़ा बीनते बीनते अचानक से उनको कुछ बहुत प्रेशियस सी चीज़ मिल जाती है जो उनके पास नहीं है, बहुत कीमती होती है उनके लिए. तो यहाँ उस कीमत के लिए, उस वैल्यू के लिए गोल्ड का यूज़ किया गया है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था. सेट
amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. यहाँ पर amidst का मतलब है in the middle of something, किसी चीज़ के बीच में. distant memory हम बोल सकते हैं बहुत दूर की मेमोरी, ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा पहले की पिछली पुरानी यादें जो हो जाती हैं वो. तो अब ये बता रही है कि वो कहाँ पे रहता था पहले, कौन सा घर उसने छोड़ दिया, ढाका यानी कि बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में पहले वो रहता था ढाका में, और वहाँ के ग्रीन फील्ड में वो रहा करता था. एंड दैट वाज एमेडिस्ट, यानी कि जहाँ पे उसका घर था वो किसके बीच में था, वो पूरा ग्रीनरी जो फील्ड थे उनके बीच में उसका घर था, मतलब आउट एरिया में रहते थे वो लोग उस प्लेस के. एंड ये सारी चीज़ें जो उसका वहाँ पे होम था अब वो नहीं है. लेफ्ट, यहाँ पे लिखा है साहिब लेफ्ट हिज होम, उसने छोड़ दिया है. अब वो घर उसका नहीं है, बट अभी भी वो उसको याद है, बहुत ज़्यादा दूर उसकी मेमोरी से नहीं है. वो उसको अपने घर के बारे में जो ढाका में था जिसको उसने छोड़ दिया है वो अभी भी उसको याद है. देयर वर मेनी स्टॉर्म एंड that swept away their fields and homes. His mother tells him, and that's why they left looking for a gold in the big city where he now lives. उसकी माँ उसको बताती कि बहुत सारे तूफान आए थे, कोई एक नहीं, बहुत सारे तूफान, और जल्दी जल्दी तूफान आए थे जिससे कि सब कुछ खत्म हो गया. swept away इसको साफ हो जाना, सब कुछ साफ हो गया. जब बहुत बड़ा नेचुरल कैलामिटी आती है उसमें सब कुछ साफ हो गया. एंड इसी वजह से उन सब लोगों को अपना घर छोड़कर आना पड़ा. किसकी खोज में, गोल्ड. अगेन गोल्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, कोई कीमती चीज या पैसा, अपने खाने और रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए. तो ढाका में जब सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, उनकी कोई भी होप नहीं बची थी कि वो कहाँ रहेंगे, क्या कमाएंगे, तो वो कहाँ आ जाते हैं, एक बड़े से शहर में आ जाते हैं जहाँ पे अब वो रहने लगते हैं सब लोग साथ साथ. तो आप देख सकते हो ये सारे माइग्रेटरी पीपल हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटी दे लेफ्ट दैट प्लेस ढाका इन बांग्लादेश. दे यूज्ड टू लिव अर्लियर, बट बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटी नाउ दे आर लिविंग इन अ बिग सिटी. नाउ दिस सिटी is Delhi we are talking about. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो अनीस जंग जब उससे इंटरेक्शन करती हैं, उससे पूछती हैं कि भाई तुम और कुछ क्यों नहीं करते हो, क्यों तुम ये कूड़ा बीनते रहते हो. तो साहिब जवाब देता है कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए. ही मटर्स मतलब जल्दी थोड़ा धीरे से बोलना और कंटिन्यूसली बोलना. एंड ग्लिबली इज कॉल्ड इन अ कॉन्फिडेंट वे. वो बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं यही काम करता हूँ, मुझे तो यही आता है और कुछ है ही नहीं करने के लिए. तब अनीस जंग उससे पूछती हैं कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो. एंड दिस आई से ग्लिबली इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट वे. उन्होंने क्यों, भाई छोटा बच्चा है वो, तो उसको स्कूल जाने की एज है. तो अनीस जंग उसको एक वी कैन से ना अननोइंग वे में पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो. और उसके बाद वो तुरंत अपनी मिस्टेक को रियलाइज भी करती हैं कि ये उन्होंने क्या पूछ लिया. एंड दैट हॉलो एडवाइस, ये जो एडवाइस है, जो इंक्वायरी है जो वो कर रही है, ये हॉलो है. हॉलो इज कॉल्ड एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड. इसका कोई बेस ही नहीं है. अगर वो स्कूल जाता होता तो वो ये काम क्यों करता, मतलब वो इतना गरीब है तभी तो उसको इस काम में फोर्स किया गया है करने के लिए इस एज में जब उसकी पढ़ने की उम्र है. तो उनको तुरंत रियलाइज हो गया अनीस जंगो कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो किसी भी बेस का नहीं है. There is no school in my neighborhood. When they built one, I'll go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? Now, he was very confident and he was also liking conversing with Anis Jung. अब उसने क्या बोला कि मैं कैसे स्कूल जाऊं, मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है. When they built one, यहाँ पे दे आया है लोगों के लिए, ओके, जो रिप्यूटेड लोग हैं, जो सोसाइटी मेंबर हैं, जो सोसाइटी बिल्डर हैं, उनके लिए आया है. अगर कोई स्कूल बनाएगा तो मैं आ जाऊंगा. तो अनीस जंग ने फिर से उसको एक प्रॉमिस किया कि ठीक है, आस्क किया. उससे पूछा कि अगर मैं कोई स्कूल खोलती हूँ तो तुम क्या आओगे. उसने कहा यस, मैं ज़रूर आऊँगा. उसने बहुत स्माइलिंग करके बोला प्रॉडली, यस मैं ज़रूर आऊँगा. एंड दिस शी सेड इन हाफ जोक, मतलब वो सीरियस नहीं थी, वो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे. उसने कहा हाँ. फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उन्होंने देखा कि साहिब उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और उनसे एक क्वेश्चन पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी. मतलब छोटे से बच्चे ने उनकी बात को सच मान लिया. उनके लिए तो वो जोक था, बट छोटे से बच्चे के लिए एक ड्रीम कम ट्रू था. तो उन्हें पूछा उस छोटे से बच्चे ने, क्या आपका स्कूल रेडी है जो आपने बोला था कि मैं स्कूल जाऊँगा.
It takes longer to build a school. I say embarrassed having made a promise that was no meant, but promises like mine about in every corner of this bleak world. And after months of knowing him, I asked him his name. अब उनको पता चला कि ये जो उन्होंने पूछा था, ये जो उन्होंने एक तरह से हाफ जोक किया था, उसने बच्चे ने उसको सीरियसली ले लिया है। और फिर अनीस जंग ने बोला कि बहुत समय लगता है स्कूल बनने में, बहुत जल्दी नहीं बनता है। एम्बैरेस्ड इज कॉल्ड, वी कैन से फील शाय। उनको थोड़ी सी शाइनेस फील हो रही थी कि उन्होंने बच्चे से इस तरह का प्रॉमिस क्यों किया, क्योंकि इस तरह के प्रॉमिस का बच्चों से करने का कोई मतलब नहीं है। वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट इतना तो जानता था ना कि अगर किसी ने उससे कुछ कहा है तो इट शुड बी टेकन एज अ प्रॉमिस। बट उनको ये रियलाइज हुआ कि इस तरह की बात उससे नहीं पूछी जानी चाहिए। बट उनको एक चीज और भी रियलाइज होती है कि जिस तरह के प्रॉमिस उन्होंने उस छोटे बच्चे से किए, वैसे ही प्रॉमिस इस पूरे वर्ल्ड में किए जाते हैं, हर कोने में किए जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज बैड एंड होपलेस। व्हाई? बिकॉज promises are made everywhere but not completed. So after months of knowing him, I asked his name. अभी उनको उसका नाम नहीं पता, अभी वो सिर्फ उसको छोटा बच्चा या लड़के कह के बात करती है, वो बस फेस टू फेस जानती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। बट लगभग एक महीने के बाद जब वो उनसे रोज मिलती थी, काफी दिनों बाद उन्होंने उसका नाम पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। Now, after months of knowing him, I asked him his name, Sahib-e-Alam. He announces, and he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have hard time believing it. अब उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया कि भाई मेरा नाम है साहिब-ए-आलम। ये उसका पूरा नाम था। इस पूरे चैप्टर में उसका शॉर्ट नेम आया है साहिब, पूरा नाम क्या था? साहिब-ए-आलम। अब उसको वो जानती थी कि उस छोटे से बच्चे को उसके नाम का मतलब नहीं पता है। अगर पता होता उसको तो उसका मतलब उसको लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यही हुआ। साहिब इज कॉल्ड लॉर्ड एंड आलम। इस साहिब-ए-आलम मतलब पूरी यूनिवर्स का जो किंग है, राजा है, वो हुआ उसका मतलब जो देवता है। ही वुड हैव हार्ड टाइम इन बिलीविंग। अगर उसको पता चल जाए कि भाई जो उसका नाम है उसका क्या मतलब है, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किंग और राजा का मतलब है, गॉड का मतलब है। तो दे आर हैविंग नो वरीज, नॉट अ पॉवर्टी काइंड ऑफ कंडीशन दे आर लिविंग इन। इसीलिए उसको बहुत हार्ड होगा अगर उसको पता चल जाएगा। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of the barefoot boys who appear like a morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. उनको नहीं पता था, उन छोटे से बच्चे को नहीं पता था उसके नेम का मतलब, और उससे अनजान वो सड़कों पर घूमता रहता था। रोम इज कॉल्ड वंडरिंग विदाउट एनी पर्पस। सारी सड़कों पे वो घूमते रहते थे। किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक साथ, आपने देखा होगा, सड़क पर बड़ा सा झोला थैला लेकर और घूमते रहते हैं। जहाँ पे भी उनको कूड़े का ढेर मिलता है, दे स्टार्टेड स्क्राउंजिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग प्रेशियस। एन आर्मी ऑफ द बेयरफुट बॉयज। आर्मी बोल सकते हैं ग्रुप जो अनकवर्ड फीट में है, मतलब उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई है, किसी ने भी नहीं पहनी हुई है। एंड दे अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। कैसे आते हैं वो? जैसे सुबह सुबह की जो चिड़ियां आती हैं उस तरह से वो आते हैं, और आफ्टरनून में वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू नो रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। धीरे धीरे काफी महीनों बाद वो पहले तो उन्होंने साहिब-ए-आलम को पहचाना, उसका नाम पूछा, बट धीरे धीरे वो उसके जो फ्रेंड्स थी उसको भी जानने लगी। तो यहाँ पे जो बताया गया है इसका मीनिंग, डिसअपीयर एट नून इन द मॉर्निंग। ये एक बार मैं बता देती हूँ, लाइक जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग वो जाते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पे उनको कूड़ा काफ़ी मिलता है, क्योंकि फिर उठा के ले जाते हैं जो नगर निगम वगैरह के लोग होते हैं, तो उससे पहले उनको जाना होता है। और दोपहर तक काफ़ी धूप हो जाती है, वो नंगे पैर चल रहे हैं, उनके पैर जलने लगेंगे, इसलिए बहुत तेज़ धूप होने से पहले ही वो वापस आ जाते हैं। तो ये एक कारण होता है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मॉर्निंग बर्ड। सो प्लीज़ रिमेंबर, उनको क्या बोला गया है? जो रेड पिकर्स हैं, जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं, उनको मॉर्निंग बर्ड्स बोला गया है। Why aren't you wearing chappals? I ask one. My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. अभी वो एक बच्चे से पूछती हैं, उन्हीं के ग्रुप में से एक बच्चे से पूछती है कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? उनको लगा पूछने का मन, तो उन्होंने कहा आस्क वन। यहाँ पे किसी एक से पूछ रही है, इसीलिए हमने कहा कि जो उनके फ्रेंड्स है उस ग्रुप से में से किसी एक बच्चे से पूछा है उन्होंने। तो वो बच्चा बोलता है कि भाई मेरी जो माँ है उसने चप्पल मुझे शेल्फ से उतार कर नहीं दी है, मतलब उसने एक बहाना
बना दिया। शेल्फ इज कॉल्ड कबर्ड, उनके कहीं रखी हुई है चप्पल, मेरी माँ ने मुझे दी ही नहीं तो मैं कैसे पहनूंगा। नाउ इवन इफ शी डिड he will throw them off, adds another। अब दूसरा जो बच्चा था, another is called, जो दूसरा उनके ग्रुप का बच्चा था, उन्होंने कहा कि she, यहाँ पे she किसके लिए आया है, मदर के लिए, ठीक है। जो बच्चा बोल रहा है ना कि मेरी माँ मुझे नहीं देती है, तो यहाँ पे she किसके लिए आया है, आप बोल सकते हो one boy's mother, ठीक है, वन बॉयज ऑफ द ग्रुप, जो उस ग्रुप का एक लड़का है उसकी माँ के लिए ये आया है यहाँ पर। उसने कहा कि अगर वो इसको देगी भी तो ये फेक देगा उनको। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच व्हेन आई कमांड ऑन इट he shuffles his feet and says nothing, I want shoes। उसमें जो एक बच्चा था उसने शूज पहने हुए थे, मतलब जो बच्चा बोल रहा था कि अगर इसकी माँ इसको चप्पल देगी तो भी ये नहीं पहनेगा, ये फेक देगा, उसने खुद ही बहुत मिसमैच शूज पहने हुए थे, एक पैर में अलग दूसरे पैर में कुछ इस तरह के शूज उसने पहने हुए थे। तो वो बताता है कि भाई ये जब उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुमने व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब उसने देखा कि भाई उसने अलग अलग जूते पहने हुए हैं, तो अनीस जंग ने बोला कि भाई तुमने कैसे जूते पहने हुए, तो ही स्टार्टेड शफलिंग हिज फीट। शफल बोल सकते हो आप, स्लाइड दैम ओवर ईच अदर, इस तरह से करते हैं ना जब बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, शर्म आती, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रगड़ना, लाइक दैट, वो ये करने लगता है आई वॉन्ट शूज, और फिर क्या बोलता है वो कि मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय who has never owned a pair of all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in the cities. On village road, it's not lack of money, but a tradition to stay barefoot. It's one एक्सप्लेनेशन। तो तीसरा बच्चा क्या बोलता है, यानी कि एक बच्चे से उन्होंने पूछा, वो नंगे पैर था, उसने चप्पल नहीं पहनी हुई थी, दूसरा बच्चे ने मिसमैच शूज पहने हुए थे, तभी तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज चाहिए, मुझे, मेरे पास जूते नहीं है, मुझे चाहिए। और यहाँ पर ये बताया गया है उन्होंने मतलब पूरी लाइफ में उसने कभी भी नहीं पहने। ट्रैवलिंग अक्रॉस, जो अनीस जंग है वो काफ़ी जगह घूमी थी कंट्री में, और जिस जगह भी वो जाती थी हर जगह उनको इस तरह के बच्चे दिखाई देते थे, क्योंकि कूड़ा बीनने वाले बच्चे आपको हर जगह दिखेंगे, जहाँ पे भी कूड़ा होगा, रैक पिकर्स आपको हर जगह दिख जाएंगे। और वो सारे ही लोग थे वो बेयरफुट, यानी कि बिना चप्पल के घूमते थे, और जितने भी विलेजेस में, सिटीज़ में, कहीं भी वो जाती थी हर जगह उनको इस तरह के बच्चे मिलते थे, और वो सारे बच्चे नंगे पैर, किसी ने भी चप्पल पहनी हुई नहीं होती थी कहीं भी उन्होंने देखा। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, अगर हम बोला जाए तो ये कोई पैसे की कमी नहीं थी कि उनके पास पैसे की कमी है कि वो कूड़े के बीच में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं नंगे पैर जा रहे हैं, वो एक तरह का ट्रेडिशन था बेयरफुट रहना। एक बच्चे ने कहा, उसने कहा कि भाई हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं, हम लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि सारे ग्रुप के बच्चे वहां पे हैं, सारे ग्रुप के बच्चे अनीस जंग से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिटन दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ अनीस जंग विद द किड्स। तो ये एक तरह से ट्रेडिशन था उनका नंगे पैर रहना। I wonder if this only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual is called continuing for a long period of time, हमेशा बने रहना। तो अनीस जंग को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि एक सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है क्या, एक सिर्फ बहाना है कि भाई हमारे पास ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम ऐसे ही रहते हैं, या कुछ और कारण है। हमेशा की जो उनकी गरीबी है, जो कंडीशन कभी ख़त्म नहीं होती है, ये उसकी वजह से है। तो ये जहाँ आप देख सकते हो किस तरह से वो रह रहे हैं यहाँ पर, कितनी कंजस्टेड जगह में इस तरह के लोग रहते हैं जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं। I remember a story from a man of Udupi, and once told me, as young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for the pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in the air of desolation. Desolation is called silt or bleakness, emptiness. तो यहाँ पर वो बता रही हैं, अनीस जंग एक और अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि एक बार वो एक आदमी से मिली थी जो उडीपी का था। नाउ उडीपी इज वन ऑफ द सिटी ऑफ कर्नाटका, एक छोटा सा शहर है वहाँ का। तो वहाँ पे एक आदमी से वो मिली एज यंग बॉय, जब वो यंग था एंड वो स्कूल जाता था, तो उसके स्कूल के रास्ते में एक टेम्पल यानी कि मंदिर पड़ता था, जहाँ पे उसके फादर थे वो प्रीस्ट थे। यानी कि जिस मैन के बारे में वो सोच रही हैं, जब वो छोटा था तो जब वो स्कूल जाता था वो एक टेम्पल पढ़ता था, उसी टेम्पल में उसके पापा जो फादर
फादर थे वो क्या थे, पुजारी जी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो रुकता था, रोज रुकता था उस टेम्पल पे और रोज क्या करता था, प्रार्थना करता था. किसके लिए, एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए. हाउ इनोसेंस, छोटे से बच्चे, मतलब वो गॉड के पास जा रहे हैं कि आके हे भगवान मुझे एक जोड़ी शूज़ दे दो. दिस इज कॉल्ड द रियल चाइल्डहुड, द इनोसेंट एज दैट डिसअपियर्स एज यू ग्रो. जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो. अब 30 ईयर्स लेटर, लगभग 30 साल के बाद, 30 साल के बाद वो जब उस प्लेस को फिर से विजिट कर रहे हैं, उन्होंने वही टाउन उसको फिर से विजिट किया, जो टेम्पल था जो पहले उस समय था जब वो छोटा सा बच्चा था जिसके फादर पुजारी थे. अब वो जो टेम्पल है वो ड्राउन्ड, वो ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है. एंड दैट वाज द एयर ऑफ सैडनेस, यानी कि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, पुरानी सारी चीज़ें हैं वो धीरे 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 सब खत्म होती चली जाती हैं. वैसे ही वो जो टेम्पल था जो उनको याद था, यानी कि 30 साल पहले भी वो यहाँ आई थी इस टाउन में, और अब जब उन्होंने वो टेम्पल देखा है तो वो कैसा हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on the folding bed. Panting is called to breathe quickly. जल्दी जल्दी सांस लेना, जब आप बहुत थक जाते हो, बहुत एक्सरसाइज या दौड़ के कहीं से आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैंटिंग. तो बैकयार्ड यानी कि पीछे का जो खुला आंगन था, अभी की बता रही हैं जो अब टेम्पल की क्या कंडीशन है. टेम्पल वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट अब वहाँ पे जो नया टेम्पल बना है, नया मंदिर बना है, वहाँ पे एक नया पुजारी भी आ गया है. तो उसका जो पीछे का जो आंगन है, वहाँ पे बहुत सारी लाल और सफ़ेद रंग की चेयर पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की. तभी उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा आता है, एंड ही हैज़ वॉर्न द यूनिफॉर्म, ग्रे कलर यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसने. एंड ही स्टार्टेड कमिंग, ही ऑल्सो वेयर सॉक्स एंड शूज़, उसके पैरों में सॉक्स हैं, शूज़ हैं. एंड एज ही अराइव्ड, वो उसके बहुत तेज़ ब्रीदिंग, मतलब वो थक गया था. ही जस्ट थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बैग, एंड दिस इज द थिंग दैट शी एक्सपीरियंस. उन्होंने देखा ये चीज़ कि वो बच्चा सॉक्स और शूज़ पहना हुआ है, किस तरह से उसने बैग अपना पटका, एंड देन स्टार्टेड सेइंग. Now looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer, and young boys like the son of the priest now wore shoes. But many other like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. अब वो बता रही हैं, उस बच्चे को देखते हुए बता रही हैं, जो नए प्रीस्ट का बच्चा है उसको वो देख रही हैं, और उन्होंने वो याद किया है कि भाई जो गॉडेस से उस बच्चे ने प्रेयर की थी. एनदर बॉय का मतलब जो मैन था ओडीपी में, जो पहले जो प्रार्थना करता था कि ओ गॉड मुझे नए नए शूज़ दे दो, तो वो जो बॉय था उनको उसकी याद आ जाती है, और वो ये कहती हैं कि भाई उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल गए. अभी बच्चा कोई दूसरा है, जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, वो दूसरे हैं, बट यहाँ पर उनको वो बात याद आ जाती है कि किस तरह से वो जो आदमी था एक शूज़ के लिए प्रार्थना करता था, और अब उन्होंने जो ये बच्चा देखा है उसी जगह पे नया उसके पास शूज़ हैं. एंड वो हमेशा वो कहते थे कभी भी मुझे इससे अलग होने नहीं देना. जो बच्चा प्रार्थना करता था, जिसको शूज़ मिल गए, उसने कहा कि भाई ये शूज़ मुझसे कभी भी अलग नहीं हो. तो गॉडेस जो देवी हैं, उन्होंने उसकी प्रेयर मान ली है, उसको शूज़ मिल गए हैं. यंग बॉय लाइक हिज सन ऑफ द प्रीस्ट, जो छोटे बच्चे हैं, जो नए प्रीस्ट के पुजारी के, जिनके पास सॉक्स हैं, शूज़ हैं, बहुत सारे इस तरह के बच्चे अभी भी हैं जिनके पास शूज़ नहीं हैं. वो शूलेस हैं, और वो कहाँ पे हैं, अनीस जंग के पड़ोस में ही हैं. और वो कौन है, रैग पिकर्स. रैग पिकर्स इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर. आप क्या बोल सकते हो रैग पिकर्स को? आई एम राइटिंग हियर गार्बेज कलेक्टर. जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उनको बोला जाता है. तो हम बोल सकते हैं कौन कौन से वर्ड आए हैं गार्बेज कलेक्टर के लिए. रैग पिकर्स आया है, मॉर्निंग बर्ड्स आया है जो हमने पढ़ा था, ये सारे वर्ड्स आए हैं. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters and came from Bangladesh back in 1971, and Sahib's family is among them. Let's see the vocabulary first. Acquaintance is called contact या familiarity. Periphery is called outer area.
metaphorically is called symbolically, and squatters means a person who unlawfully occupies a place, a building or any other room, right? So here जो उनके कांटेक्ट में हैं, जितने भी रैग पिकर्स हैं, वो सारे कैसे हैं, बेयरफुट हैं। एंड यही चीज उनको कहाँ लेकर जाती है, सीमापुरी। यही वो प्लेस है जहां पर ये सारे रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। तो अनीस जंग बहुत काफ़ी टाइम से उनको जानती हैं, तो एक दिन वो उनके घर जाती हैं, मतलब उनके जहाँ वो रहते हैं वो एरिया देखने के लिए जाती हैं। और ये जो सीमापुरी था, ये कहाँ पे था, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी इज कॉल्ड, दिल्ली के बाहर की तरफ था, ये बोला जाता है, बट एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा दूर था। मतलब ऐसे बोलें कि जैसे कि हमारे शहर के बाहर है, थोड़ा सा दूर है शहर के बाहर, नहीं, वो बहुत दूर था, काफ़ी दूर था वो शहर से। मेटाफोरिकली बोल सकते हैं, सिम्बॉलिकली बोला जाता था कि ये बाहर, दिल्ली के बाहर की तरफ है, बट काफ़ी बाहर था वो। एंड जो यहाँ पर रहते थे वो वही सारे लोग थे। वो उन लोगों को कोई परमिट नहीं मिला हुआ, तो कोई परमिशन नहीं मिली हुई थी कि यू आर अलाउड टू लिव हियर। दे ऑल आर स्क्वेटर्स, मीन्स दे came there, or we can say the migratory people, they came from Bangladesh and they found that place vacant and they started living over there. So these person are called squatters. They are not seeking for the permission to live at any place. They started and lived there because nobody is just paying attention, whoever is living outside of the city, because nobody goes there. इतनी दूर कौन रहने जाएगा, तो यहाँ पे गरीब लोग ही रह सकते हैं। तो वो यहाँ पर रहते थे, जो बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे, 1971 में आए थे, और साहिब की फैमिली उनमें से एक थी जिसको वो जानती थी, ठीक है। तो सीमापुरी उस प्लेस का नाम है। सीमापुरी was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In the structure of the mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live in 10,000 rag pickers. तो यहाँ पे वो बता रही हैं, wilderness is called a wasteland, बिल्कुल जहाँ पे जो ज़मीन है वो किसी काम की नहीं है। टैरपोलिन इज अ हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लॉथ, बहुत बड़ा सा होता है ना, तिरपाल जिसको हम बोलते हैं, जो लगा लेते हैं हम, टेंट में भी काम आती है वो बताया गया है। एंड परमिट्स आर कॉल्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो वो यहाँ पे बता रही है कि सीमापुरी जो है वो एकदम कहाँ पे है, वेस्ट लैंड में, मतलब उस लैंड का कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी वहाँ पे जाता नहीं, इसीलिए कोई उनको वहाँ से हटाता भी नहीं है। देन इट स्टिल इज, अभी भी वो बिल्कुल वैसी ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। पहले कैसी थी, खाली थी, अब वहाँ पे वो लोग आके रहने लगे हैं। नाउ कैसी चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर, यानी जो भी घर हैं, वो किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। एंड देयर इज रनिंग वाटर, वाई, बिकॉज देयर इज नो, दिस इज मीन्स द रूफ इज ऑफ टिन, ईदर द सीलिंग इज ऑफ टिन, रूफ ऑफ टिन एंड टैरपोलिन। मतलब उनकी जो इस तरह की कंक्रीट की जो सीलिंग होती, छत होती है, वो नहीं है, क्योंकि वो नहीं बना सकते। तो वेदर दे हैव स्ट्रेच द टैरपोलिन, जो मोटा कपड़ा होता है, और टिन, that is made up of tin, devoid of sewage and drainage, कोई भी सफाई की या पानी के निकलने की सुविधा नहीं है वहाँ पर। and always, that's why always we can find the running water, all the water that is used for washing, bathing, okay, and for getting fresh whatever water, so no drainage system, proper drainage system is there, so everywhere you can find this running water. And near about 10,000 rag pickers, कितने लोग रहते हैं वहाँ पे, लगभग 10,000 लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without any identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. जो वहाँ पे लोग रहते हैं, लगभग उनको 30 साल हो गए हैं वहाँ पे रहते हुए। ये वही टाइम हम बोल सकते हैं 30 साल पहले, जब यहाँ पर अनीस जंग आई थी और वो UDP का जो मैन था वो उनको मिला था। 30 साल हो गए हैं, इनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब हम बोल सकते हैं, हमारे पास जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, उनके पास कुछ भी नहीं है। बट उनके पास क्या है, राशन कार्ड। राशन कार्ड किस लिए है, कि भाई उनको खाना मिल जाता है राशन कार्ड से। आपने देखा होगा राशन की दुकानें जहाँ पे सरकार की तरफ से खाना मिलता है, 5 रुपए 10 रुपए किलो के हिसाब से चावल दाल इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे मिल जाती हैं, बहुत सस्ती मिल जाती हैं। और ये राशन कार्ड किस वजह से हैं, सो दैट द वोटर्स, ठीक है, जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, वो उनका नाम अब उस राशन कार्ड में दे सकें, और ये जो उनका आइडेंटिफिकेशन है ये उनको वोटिंग में काम आता है। मतलब एक तरह से देखा जाए यहाँ पे, तो दे आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ दीज इलिटरेट पीपल, ऑल द पर्सन्स रिप्यूटेड, और ऑल द मीन्स कैंडिडेट्स हु आर जस्ट स्टैंडिंग इन द इलेक्शन, जो इस इलेक्शन में खड़े होते हैं, दे वॉन्ट जस्ट वोट्स
फ्रॉम दैट। तो ये एरिया जिस भी वोटर की लिस्ट में आता है, जिस भी वी कैन से ना जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसकी लिस्ट में आता है, उसके कवरेज में आता है, ये सारे लोग उसको वोट देते हैं और बदले में इनको क्या मिल जाता है, राशन। तो ये बिना पढ़े लिखे हैं, जब भी इनको ज़रूरत होती है ये आते हैं, बोलते हैं, अपना प्रचार करते हैं कि भैया आकर आप हमको ये वोट करोगे या ये यहाँ पे करोगे। उनको क्या पता क्या होता है वोट, नहीं पता। ये आपको यहाँ पर ये बस ये लगाना है इस तरह का स्टैम्प, इफ़ यू विल डू दैट यू विल गेट फूड टू ईट, एंड दे जो वो करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, उनके पास सिर्फ देखा जाए तो आइडेंटिफिकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है। चलो आगे देखते हैं। Food is more important for survival than identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered saris when I asked why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents and that become their transit home. Tattered is called torn, worn, फटी हुई, and transit home is called temporary homes. अब यहाँ पर अनीस जंग का जो बेसिक चीज़ है वो ये पूछ रही है कि आप लोग यहाँ पे क्यों रहते हो। तो वो उसमें से वो जब बात कर रही हैं तो वहाँ पे एक ग्रुप है, मतलब बच्चे हैं तो औरतें भी हैं। जब वो वहाँ पे सीमापुरी विजिट करने गई हैं तब वहाँ पे एक औरतों के ग्रुप से बात कर रही हैं। सभी ने फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई हैं, गरीब लोग हैं। वो बता रहे हैं कि भाई हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा क्या है, हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी नहीं। अगर रात को हमारी फैमिली को भरपेट खाना मिल जाता है, अगर हम बिना पेट में दर्द खाली पेट के सो जाते हैं, हमारे लिए वही बहुत है। ये जो प्लेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं ये हमको ये चीज़ दे रहा है, इसीलिए हम उस फील्ड में क्यों जाएं जिसने हमको कुछ भी नहीं दिया, जो हमको खाना नहीं दे सकता है। ये उस वुमेन जो ग्रुप ऑफ वुमेन है वो उनका ये कहना है। देन उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ उन्होंने कब बोला, जब अनीस जंग ने उनसे पूछा कि भाई तुमने अपनी इतनी ब्यूटीफुल जो लैंड ऑफ द ग्रीन ढाका जहाँ आप लोग रहते थे वहाँ पे छोड़ के क्यों आए, तब उन्होंने ये चीज़ बताया। उन्होंने कहा कि भाई हमको जहाँ भी फूड मिल जाता है, अगर जहाँ भी यहाँ प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, जहाँ भी हमको खाने के लिए रहने के लिए मिल जाएगा हम अपने टेंट वहाँ पे गाड़ देंगे और वहीं पे हम अपने ट्रांजिट होम या टेम्परेरी होम बना लेंगे। ये टेम्परेरी तो हुए मिट्टी के बने हुए टिन और तारपोलिन के टेम्परेरी होम कहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे उनको खाने और रहने के लिए मिल जाएगा। तो ये आंसर था उस क्वेश्चन का जो अनीस जंग ने पूछा था कि भाई आप लोग यहाँ पे क्यों रहने आए हो, एंड उन्होंने ये जवाब दिया। Children grow up in them becoming partners in the survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, the roof over their heads, even if it is lacking roof, but for a child it is even more. अब जो बच्चे हैं वो उसी माहौल में बड़े होते हैं और जो पार्टनर हैं पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल आप बोल सकते हो, टू लिव, टू अर्न द लिवलीहुड, कमाना, पैसे कमाना, जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। तो जो फैमिली है जो रैक पिकिंग करती है, एज द चिल्ड्रन आर गोइंग, एज दे आर जस्ट रीचिंग अ सर्टेन age, they started doing their profession, they started adopting and started working, and they are just contributing in earning the money or earning the things. And survival, what they are doing rag picking, because in Simapuri, if we are talking about the 10,000 family, then 10,000 family all are the rag pickers. 10,000 लोग अगर रहते हैं तो सब वहाँ पे रैग पिकिंग करते हैं, वो रैग पिकर्स का ही वो एरिया है। और यहाँ पर वो बताते हैं कि इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट का किसको बोला गया है, रैग पिकिंग को। यहाँ पे रैग पिकिंग को फाइन आर्ट बोला गया है। आर्ट का मतलब स्किल, कि आप किस तरह से कूड़े को ढूंढते हो, क्या चीज़ें लेके आते हो, कौन सी वैल्यूएबल काम की चीज़ है जो आगे काम आएगी। तो ये इस तरह से एक आर्ट है जो उनको सिखाई गई है। और जो कूड़ा है वो उनके लिए क्या है, गोल्ड है। हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हाथ नहीं लगाते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इनके लिए उसी चीज़ की क्या वैल्यू है, वो इसको बहुत कीमती समझते हैं। इट इज़ डेली ब्रेड। डेली ब्रेड का मतलब वो उनके लिए रोज़ का खाना है, एक छत है उनके घर के लिए। और अगर उनके घर पे छत नहीं भी है
तो भी एक चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। हाँ, एक बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा है। बच्चे के लिए क्यूरियोसिटी है, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है जो वो एक्सप्लोर कर सकें, सिर्फ और सिर्फ ये कूड़ा है, एक कूड़ा का ढेर है। अगर बच्चा जाएगा तो बहुत क्यूरियस होगा, पता नहीं आज उसको क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ जो वो हमेशा से चाहता हो। तो यही चीज़ बताई गई है कि अगर उनके लिए ये खाने के लिए चीज़ है, मतलब उनके डेली का खाना है, उनके रहने के लिए छत है, और एक बच्चे के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम बोल सकते हैं जो गार्बेज है उसकी उन सारी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दोनों ही फैमिलीज़ के लिए। I sometimes find a rupee, even 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighten up. When you can find a silver coin in the heap of the garbage, you don't stop scrounging for there a hope, finding more. It seemed that for the children. अब साहिब एक और चीज़ ऐड करता है कि बच्चों के लिए ये क्यों वैल्यूएबल है, क्योंकि कभी कभी उन लोगों को क्या मिल जाता है, 1 रुपये या 10 रुपये का नोट मिल जाता है। सिल्वर कॉइन का मतलब है कोई भी सिक्का, जो हमारे कॉइन्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीप इज कॉल्ड ढेर, लाइटिंग अप इज कॉल्ड शो द जॉय एंड हैप्पीनेस। जब वो इस तरह की बात कर रहा है उसकी आंखों में चमक है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ यही चीज़ है, बस और किसी चीज़ के बारे में वो बात नहीं कर सकते हैं। हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, वी ऑलवेज फील कन्फ्यूज्ड कि हम किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को हमें कम खुशी मिलती है, किससे ज़्यादा मिलती है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट उनके पास तो नहीं है। तो वो हमेशा ये जो बात बता रहा है अनीश जंग को, वो ये बता रहा है कि जब भी हमको कभी 10 रुपीज़ मिल जाते, कभी हमको 10 रुपये मिल जाते हैं, कभी हमको सिल्वर कॉइन मिल जाते हैं, और ये आपको कब मिलेगा, जब तक उस ढेर में से, हीप इज कॉल्ड ढेर, जब तक आप उस गार्बेज को ढूंढते रहोगे, खंगालते रहोगे, तब तक देयर विल बी अ होप दैट यू कैन गेट अ प्रेशियस थिंग एंड देयर इज अ होप फाइंडिंग मोर। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से होप वाली बात है कि पता नहीं उनको कब क्या मिल जाए, इसीलिए वो ढूंढते रहते हैं, बराबर ढूंढते रहते हैं, काफ़ी देर तक ढूंढते रहते हैं। Garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder, and for the elders, it is the means of survival. Survival is called to be alive. दोनों ही लोग, मतलब बड़े और बच्चे, दोनों का काम है, वहाँ पे सबका यही काम है, बट दोनों के लिए उस गार्बेज, उस कूड़े के मायने अलग हैं। यानी कि बड़े जो लोग हैं वो उनको एक अर्निंग है, उनका ज़िंदगी या पैसे कमाने का तरीका है, बट छोटे बच्चों के लिए वो क्या है, वो एक क्यूरियोसिटी है, एक वंडर चीज़ है, एक आश्चर्य की चीज़ है, पता नहीं उनको आज क्या मिलेगा जिससे उनको बहुत खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों लोगों के लिए उस गार्बेज के जो मायने हैं वो अलग अलग हैं। One winter morning, I see Sahib standing a fenced gate, the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch the standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits, and the gatekeeper lets me use the swing. अब वो बताता है, अनीश जंग उसको एक मॉर्निंग फिर देखती है साहिब को, तो वो देखती है कि साहिब वॉज स्टैंडिंग ऑन अ फेंस्ड गेट। फेंस्ड का मतलब जो बाहर बाउंड्री होती है, बाउंड्री लगी होती है, वहाँ पे जो गेट होता है, वो बच्चा खड़ा हुआ था, वहाँ पे क्या देख रहा था, टू मेंस वर प्लेइंग टेनिस, टेनिस का मैच हो रहा था। अंदर बाहर एक क्लब था, उस क्लब के बाहर वो खड़ा हुआ था, और वो जो क्लब जो टेनिस प्लेयर है उन्होंने टेनिस की ड्रेस पहनी हुई थी वाइट, और शूज़ भी पहने हुए थे उन्होंने। एंड देन साहिब सेड आई लाइक दिस गेम, उसको अच्छा लगता था ये गेम। तो वो बताता है कि कंटेंट, कंटेंट इज कॉल्ड सेटिस्फाई, फीलिंग सेटिस्फाइड, एंड हम्स इज कॉल्ड टू मेक अ लो कंटिन्यूस लो नॉइज। तो यहाँ पे वो बताता है लो लो इज कम 2 times। वो बताता है कि मुझे ये गेम है वो बहुत अच्छा लगता है, इसको देखना, यहाँ पे खड़े होना, बट कोई भी मुझे अंदर नहीं जाने देता है। लेकिन जब भी कभी मैं अंदर जाता हूँ तो जो वहाँ का गेट कीपर है वो मुझे स्विंग को यूज़ करने देता है, इट्स अ राइट। तो वो मैं जब भी जाता हूँ वो मुझे मना नहीं करता और मैं वहाँ पे झूल सकता हूँ। Now here Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother
him. अब वो बताता है वो अपने शूज़ दिखाता है कि देखो मैंने भी ये शूज़ पहने हुए हैं, टेनिस के शूज़, ये कैसे थे, उसको किसी ने दिए थे। उसने कहा बताया कि भाई किसी ने मुझे दिए हैं ये, लेकिन सच्चाई क्या थी? डिस्कार्डेड इज कॉल्ड थ्रोन अवे एंड बॉदर इज कॉल्ड वरी। किसी जो रिच बॉय था, कोई अमीर बच्चा था, उसने ये शूज़ फेंक दिए थे। वाई? बिकॉज इन दोनों शूज़ में छेद हो गए थे। ठीक है, शूज़ में तो छेद हो गए तो उसने पहनने से मना कर दिया, बट उसके लिए तो ये बहुत है। डज नॉट बॉदर, इसको कोई परेशानी नहीं है। यानी कि साहिब को जूते पहने और जूते में छेद है, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जूते हैं उसके लिए यही काफ़ी है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट even shoes with a hole is dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. एक बच्चे को जो हमेशा नंगे पैर घूमता है, उसको चप्पल भी नसीब नहीं है पहनना, उसको अगर छेद वाले जूते भी मिल जाएं या शूज विद द होल, दैट विल जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. बट द गेम, द टेनिस, द अनदर थिंग दैट ही लाइक, दैट वाज गेम, बट दैट वाज आउट ऑफ हिज रीच. वो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था, यानी कि वो गेम नहीं खेल सकता था, सिर्फ देख सकता था. तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से उनकी मायूसी है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में हमको अच्छी लगती हैं, उनको भी पता चलती हैं, बट उनको पाने का हक नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. This morning Sahib on his way the milk booth in his had the steel canister. अब वो मॉर्निंग बूथ में यहाँ पे कहाँ जा रहा है? दिस मॉर्निंग, इस सुबह वो कहाँ जा रहा है? मिल्क बूथ, यानी कि दूध की दुकान पर जा रहा है, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, बड़ा सा जो दूध जिसमें लाते हैं वो कैनिस्टर है. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I'm paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job, I ask. His face, I see, has lost the carefree look. अब उसने बताया अनीस जंग को, अनीस जंग रोज सुबह उससे मिलती थी, तो उन्होंने देखा कि सुबह वो जा रहा है, तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या है? उसने कहा कि भाई अब मैं एक टी स्टॉल पे काम करने लगा हूँ. I started working at a tea stall, चाय की दुकान पे. एंड पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दिखा के बोला कि भाई वहाँ पे है, वहाँ मैं काम करता हूँ. एंड मुझे कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. मील्स मतलब लंच या डिनर जो है वो भी उसको वहाँ पर मिलता है. डज ही लाइक द जॉब? ये किसने पूछा है क्वेश्चन? अनीस जंग ने पूछा कि क्या तुमको अच्छा लगता है ये? सीम्स हिज फेस, उसने कहा कि नो. केयर फ्री लुक इज कॉल्ड, जैसे किसी की चिंता नहीं है, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, नो मुझे नहीं अच्छा लगता है, लाइक उसको वहाँ पे काम करना पसंद नहीं था. द स्टील कैनिस्टर सीम्स heavier than a plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop, and Sahib is no longer his own master. अब यहाँ पे फिर से एक इनडायरेक्ट चीज़ बताई है कि जो कैनिस्टर वो लेकर जा रहा है वो बहुत भारी है, बट even then he was holding this canister, but even then that doesn't or did not belong to him. वो उसका नहीं है, वो किसका है? वो चाय की दुकान के जो मालिक हैं उनका कैनिस्टर है. Means the sack, the white color or the brown color sack that he used to carry on his shoulder, that is very light. Why? Because he is owning his शॉक. तो ओनिंग यहाँ पे बताया गया है कि जब सुबह वो रैक पिकिंग करने जब भी जाता है, तो वो जो झोला लेता है, थैला लेता है अपने साथ में, उसमें क्या है? उसमें कूड़ा है जो भी भर है, लेकिन वो उसका है, वो लाइट है, उसको अच्छा लगता है ये काम करना. बट ये जो स्टील का कैनिस्टर है ये तो उसका है ही नहीं, वो इसका मालिक नहीं है. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस. यहाँ पर एक ओननेस की बात बताई है, मास्टरी की बात बताई है. मीन्स आपको उस चीज़ में खुशी मिलती है जो आपकी अपनी हो. ठीक है, जो आपकी अपनी चीज़ होगी उसमें यू कैन डू और यू कैन जस्ट टेक द वर्क आउट ऑफ दैट थिंग वेन एवर यू वॉन्ट, इन विच वे यू वॉन्ट. बट इफ़ यू आर having something that you have to do the work according to the direction of the other person, so this really not giving you this kind of satisfaction. The same thing was with that little boy Sahib. उसको अच्छा लगता था जब वो रैक पिकिंग करने जाता था, कूड़ा बीनने जाता था, उसका वो जो थैला था वो अपना था. बट ये जो कैनिस्टर है वो किसी और का है, उसको उनके अंडर में काम करना पड़ता है. इसीलिए उसके चेहरे पर वो हंसी नहीं थी, वो खुशी नहीं थी जब वो वहाँ पे टी स्टॉल पर काम करता था. Now this was the end of first chapter. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक लूज ओपन एंडेड क्वेश्चन में छोड़ा है अनीस जंग ने कि ये जो है, अगेन दिस प्रूव्स वेरी राइट, दिस इज द परपेचुअल
वी कैन से ना द कंडीशन ऑफ द पॉवर्टी, कभी भी चेंज नहीं होगा। जो एक समाज का हिस्सा है गरीब, वो हमेशा गरीब रहेंगे, वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं कि उनको बहुत अच्छा मिले, बट कुछ भी उनको इस तरह का चीज़ नहीं मिल पाता है। वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी उसी माहौल में बड़े होते हैं और उसके बाद उसी माहौल में ही भी उनको जीना सीखना पड़ता है। चलो तो अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। दिस इज पार्ट नंबर 2। अभी हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया है, अब हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और ये इसका है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे ये जो आई आया है, ये मेन जो कैरेक्टर है इसमें उसके लिए आया है। जनरली किसी प्रोज या पोम की जो राइटिंग में आई आता है वो नरेटर के लिए आता है, राइटर के लिए या को जो स्टोरी नरेट कर रहा है, बट यहाँ पे आई किसके लिए आया है, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग अ ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो यहाँ पर ये जो आय है ये आया है मुकेश के लिए, ठीक है। मुकेश यहाँ का मेन कैरेक्टर है ये, और ये जो आय आया है ये आया है अनीस जंग के लिए। अनीस जंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो चैप्टर, ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है इंटरेक्शन पे। उन्होंने जो बच्चों से बातें की हैं उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो यही वो बता रहे हैं कि मुकेश इंसिस्ट, अनाउंसेस इज कॉल्ड डिक्लेयर एंड इंसिस्ट इज कॉल्ड किसी पर फोर्स करना, किसी को जोर देकर बात करना। तो वो जोर देकर बात करता है कि भाई जो मैं हूँ, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ, मैं अपना मास्टर खुद बनना चाहता हूँ। और वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक। वो ये चीज़ डिक्लेयर करता है। किसको डिक्लेयर करता है, अनीस जंग को, जिसने उससे पूछा डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। ठीक है, तुम अगर मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो तो क्या तुमको कार के बारे में कुछ पता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले पार्ट में उन्होंने हमको रैग पिकर्स के बच्चों की कंडीशन, उनका जिस तरह का लाइफ है वो बताया, द वे ऑफ लीडिंग द लाइफ, वो किस तरह से कंडीशन में रहते हैं फिर भी वो खुश हैं। दूसरे ये जो हमारा है इसमें भी वही कंडीशन है, द डिप्राइव्ड पर्सन, बट यहाँ पे रैग पिकर्स की कहानी नहीं है, वो सीमापुरी तक थे। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये दूसरे बच्चे की कहानी है। दीज आर ऑल्सो फाइटिंग विद द सेम पॉवर्टी, बट दिस इज द ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल इज डिफरेंट फ्रॉम द रैग पिकर्स। सो द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ car, is Mukesh, and Anis Jung is having the interaction with this boy. Now how she met with, and that accidental meeting and the time, that is not declared over here. बस यहाँ पे बताया गया है कि वो ट्रेवल, मतलब उनको अच्छा लगता था जगह जगह जाना, लोगों से बातें करना, एंड एट द बेसिस ऑफ हर सर्वे शी यूज्ड टू राइट हर ट्रेवलॉग। तो वो उस बेस पर लिखती थी। उन्होंने कहा कि भाई तुमको कार मैकेनिक बनना है, लेकिन कुछ पता है तुमको कार के बारे में। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर। मैं सीख लूंगा, उसने कहा। ही, यहाँ पे ही किसके लिए आया है, मुकेश के लिए, ठीक है। मुकेश ने कहा कि मैं सीख लूंगा, अगर मुझे जो भी पता है उसके बाद जो और चाहिए मैं सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, उन्होंने सीधी उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सीधा मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। हम लोगों को सारी चीजें डिमांड पर मिलती हैं। कहीं हमने देखा, वी आर नॉट अर्निंग दैम, वी आर नॉट ओनिंग दैम, वी आर नॉट नोइंग द रियल वैल्यू बिहाइंड अचीविंग दोज थिंग, बट दीज little children, they are whatever they want, they have to earn them. उनको लेना पड़ता है, उनको हासिल करना पड़ता है अपने हार्ड वर्क से। That's why they are saying कि जो वो उनकी बिल्कुल स्ट्रेट आंखों में देखने का क्या मतलब है कि कॉन्फिडेंस, उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है तो मैं सीख लूंगा ये सारी चीजें। His dream looms like a mirage amidst the dust of the street that fills his town, Firozabad, famous for its bangles. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये देख लेते हैं। एमेडिस्ट हम पढ़ चुके हैं। मिराज होता है समथिंग दैट इज फेक। जैसे हम लोग कभी जाते हैं, जैसे आप लोग ड्राइविंग करते हो, कभी फील किया हो, नहीं किया हो तो आप करना। जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं ऐसा लगता है दूर सड़क पे कहीं पे पानी बिखरा हुआ है। ऐसा ही डेजर्ट के बारे में आपने सुना होगा कि पूरा डेजर्ट एरिया है, कभी लगता है कि वहाँ पे पानी है, डेजर्ट के बीच में पानी है। दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज जस्ट अ मिराज। वो एक सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, एक फेकनेस है बोल सकते हैं हम, फैंसी है एक तरह की। तो ये बता रहे हैं कि लूम्स का मतलब होता है वीव करना, किसी चीज को बुनना।
तो यहाँ पे आप बोलो कि वीव्स लूम द मिराज एमेडिस्ट द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट। वो जहाँ पे रहते हैं, वो जो सड़क है वो किससे, धूल से भरी हुई है, मतलब वो भी उसी कंडीशन में रहते हैं, पॉवर्टी की कंडीशन में रहते हैं, और उसी के बीच में वो अपने सपने बुन रहा है। किस तरह के सपने, मोटर मैकेनिक बनने के सपने किसने बुने हैं, मुकेश ने बुने हैं। एंड दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, फिरोजाबाद की। जो पहले वाला हमारा था पार्ट, उसमें दिल्ली के पास का एक जगह बताया है सीमापुरी, ठीक है, और यहाँ पर जो ये बताया है ये फिरोजाबाद, ये एक यूपी का छोटा सा शहर है, और दिल्ली हमारा काफ़ी बड़ा है, मेट्रो सिटी है, बट ये जो कहानी है फिरोजाबाद, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई एनीस जैन कितनी जगह पे घूमी है, हर स्टेट में, छोटे बड़े बाहर के जितने भी छोटे छोटे एरिया हैं शहर के बाहर, हर जगह वो घूमती थी, लोगों से बात करती थी, इंट्रैक्शन करती थी, और उस बेस पे शी हैज़ प्रेजेंटेड एंड ब्रॉट दिस बुक स्टोलन चाइल्डहुड। सो वो फिरोजाबाद में है, जो किसके लिए जाना जाता है, चूड़ियों के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद यूपी का एक छोटा सा शहर है, एंड दिस इज रियली फेमस थ्रू आउट द कंट्री जस्ट फॉर मेकिंग द बैंगल्स, जो चूड़ियाँ पहनी जाती हैं उसके लिए। Then every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where the families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Glass blowing industry is called industry related to making glass. कांच, ठीक है, ग्लास से यहाँ पे क्या मतलब है, कांच। Furnaces is called a closed container where heat is produced. आप इसको हिंदी में बोल सकते हो भट्टी। जो भट्टी होती है, जो एक कंटेनर या कोई इस तरह का चीज़, जहाँ पे हम लोग जाते हैं ना, जब मिडवे पे खाना खाते हैं हम लोग, वहाँ पे भट्टी होती है अंदर बहुत तेज, जहाँ पे आँच होती है, तो दैट इज कॉल्ड फर्नेसेस। वेल्डिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल बाय हीटिंग दैम, दिस इज कॉल्ड मेटल। यहाँ पे मेटल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, METAL, ठीक है, मेटल बाय हीटिंग दैम। तो जिस प्रोसेस से मेटल को जोड़ा जाता है, वो गर्मी से जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं वेल्डिंग। आपने देखी भी होगी वेल्डिंग होते हुए, जिससे कि एक मेटल से दूसरे मेटल को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि फिरोजाबाद में अदर फैमिली, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज, अगर वहाँ पे 500 फैमिली हैं तो लगभग 490 फैमिलीज इसी काम में लगी हुई हैं, एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल। सब चूड़ियाँ बनाते हैं वहाँ पे, और ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे जितने भी परिवार रहते हैं उनकी जेनरेशंस पास हो गई हैं, एंड वो यही काम करते आ रहे हैं उस फर्नेस के पास में। वो वेल्डिंग करते हैं, ग्लास को ज्वाइन करते हैं ग्लास को, देन दे मेक द बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स। It seems means as if the Firozabad bangle is so prominent profession over there. It seems as if on the entire land of this country that is distributed the bangles for the women from here only. सिर्फ फिरोजाबाद से ही वहाँ पर जाती हैं, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो मेन काम है वो क्या है, किस प्रोफेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बैंगल मेकिंग। इट इज़ नॉट ईजी प्रोफेशन टू डू। आगे हम पढ़ेंगे मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। नन ऑफ दैम नो दैट इज it is an illegal for the children like him to work in the glass furnaces with high temperature and dingy cells without air and light, that the law it enforced could get them, all those 20,000 children, out of the hot furnaces where they slog their daylights are. Dingy is called dirty or dim, and slog means working very hard. Daylight hours, slogging daylights hour is called hours of the day when there is सनलाइट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मुकेश की जो फैमिली है वो भी उनमें से एक है, यानी कि जो मुकेश है उसकी जो फैमिली है वो क्या करती है, वो भी बैंगल बनाने का काम करती हैं। बट किसी को भी ये नहीं पता है, जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता है कि ये बच्चों के लिए इल्लीगल है। जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो ये नहीं जानते हैं कि ये काम जो है वो बच्चों के लिए इल्लीगल है। बट क्योंकि वो जो काम है वो कहाँ पे बैठ के किया जाता है, फर्नेस में, ग्लास फर्नेस में किया जाता है। जो ग्लास बनाने का काम है वो भट्टी के पास हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। एंड द सेल्स, जो रूम है, दे आर वेरी डार्क, वेरी डिंगी, वेरी डर्टी, वेरी स्मॉल, एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लाइट एंड एयर, नो लाइट एंड नो air need to come, because the glass making process is a kind of that it requires to be made in the dingy and
and dark and small, like without air, no light must be there, and that's why only in that condition this glass or the bangle making process is done. So if enforced, agar force kiya jata hai, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. लगभग 20,000 बच्चे, हमने सीमापुरी में पढ़ा था कि वहां पे लगभग 10,000 फैमिली थी, 10,000 फैमिली थी, यहाँ पे लगभग 20,000 बच्चे हैं जो कि उस हॉट फर्नेस के पास में बैठकर और slog their daylights are, slog is called, just we can say, the ruin, means they are not allowed to go and have the charm of the sunlight, to play in sunlight, to just have their own time to spend in that sunlight. No, they have to just spend all the sunlight days, means the daytime we are talking about, even the daytime. बाहर बहुत रोशनी है लेकिन जहाँ वो काम करते हैं बहुत अंधेरा है, बहुत घुटन सी होती है, वहाँ पे एयर नहीं है, लाइट नहीं है, इसी जगह पे उनको काम करना होता है, and they are deprived from the sunlight, air and freshness of the atmosphere थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ. पूरी लाइफ वो इस चीज़ से डिप्राइव रहते हैं. और इसमें कितने बच्चे, लगभग 20,000 बच्चे इंगेज है. तो हम देख सकते हैं सीमापुरी एक छोटा सा बनाया गया आउटस्कर्ट में, एक बोल सकते हो आप कि ये एक तरह का एरिया बन गया था जिसको आप बोलते हो बैकवर्ड एरिया. आप बोल सकते हो जैसे कि मुंबई में होते हैं बहुत सारी चौल हैं, ठीक है, वो अलग अलग जहाँ पे भी उनको जगह मिल जाती है, ट्रांसिटरी होम आज है वहाँ पे कल नहीं है. वो 10,000 लोग थे, बट यहाँ पे तो बच्चों का ही नंबर देखो आप 20,000 है, तो फैमिली में जो और लोग काम करते हैं उनके नंबर और ऐड करो. मीन्स thousands of the peoples are engaged in this work including the children, but nobody knows that it is illegal to make or to force the children to be work in this glass blowing factory near the high temperature. किसी को भी नहीं पता है. Often losing the brightness of their eyes, Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says in being rebelled. We walked down stinking lanes choked with the garbage, past homes that remains, hovels with the crumbling walls, wobbly had and doors and no windows, crowded with the families of humans and animals coexisting in the primeval estate. Beam is called shine brightly, तेजी के साथ चमकना. Volunteers means freely offers to do something. Choked is called blocked, suffocated, and crumbling is called falling down. Wobbly means unsteadily, we can say जो balance नहीं है, control नहीं है, हिलने डुलने वाला. Coexisting is called present at the same time and same place, and primeval is called प्रीहिस्टोरिक स्टेज. सो यहाँ पर कभी कभी क्या बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं. इफ़ यू आर कीप वर्किंग विद योर आइज थ्रू आउट योर लाइफ इन द डार्क place in the small, without air, without no light, then what will happen? Obviously you will lose your eyesight. So Mukesh, but in this condition as well, Mukesh eyes beam, वो उसकी आंखें चमकती हैं और वो अपने आप इस तरह का ऑफर, मतलब उसने खुद ही डिसाइड किया है ये सारी चीज़ें. टेक मी होम, क्या डिसाइड किया है उसने? कहा कि नहीं, मैं आपको अपने घर लेकर चलूँगा, आप मेरे साथ घर चलो. किससे? अनीस जंग से. मीन्स अनीस जंग उससे बात कर रही है. छोटे बच्चों से जब भी कोई बात करता है, ऑलवेज दे आर हैविंग अ काइंड of hope that this man will definitely do something for our upliftment. The same thing was there. मुकेश छोटा सा बच्चा है, उसको अच्छा लगा कि कोई बात कर रहा है, उससे पढ़ा लिखा एक लेडी है, वो बात करी, वो उसको अपने घर लेकर जाता है. वो खुद बोलता है कि आप मेरे घर चलो, एंड वो बताता है, बहुत प्राउडली बताता है कि मेरा घर दोबारा से बना है. रिबिल्ट इज कॉल्ड, पहले था जैसा भी, अब दोबारा वो बना है. अब वो लोग जाते हैं. दैट वॉज स्टिंकिंग लेन. स्टिंकिंग इज कॉल्ड दैट प्रोड्यूस वेरी बैड स्मेल, बदबूदार. लेन्स इज कॉल्ड गलियां. वो बहुत, जिस गलियों में से लेकर मुझे जा रहा था बहुत बदबू आ रही थी वहां पर. एंड वाई दे वर देयर, बिकॉज दे वर चोक्ड विद द गार्बेज. जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए थे और चोक मतलब कहीं भी निकलने की जगह नहीं थी. अब गार्बेज वहीं पे पड़ा रहेगा कूड़ा तो स्मेल तो आएगी, वो स्मेल भरी हुई थी. पास्ट होम दैट रिमेन, हॉवल्स विद द क्रम्बलिंग. जितने भी घर वो जा रही थी वो किस तरह के थे? हॉवल्स. ऐसा लग रहा था कि कोई केव है, कोई गुफा है, छोटी छोटे इस तरह की गुफाएं. वो घर देखने में घर नहीं लग रहे थे. वो कैसे थे? ऐसा लग रहा था उनकी जो वॉल है, दीवारें हैं, वो अभी तुरंत गिर जाएंगी, फॉलिंग डाउन. मतलब जो उनकी जो वॉल थी वो कॉन्क्रीट या सीमेंट, इस तरह के पक्के घर तो थे नहीं. जिस तरह के भी उन्होंने घर बनाए थे तो घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी थी. वुबली डोर्स, जो डोर्स थे वो कभी भी टूट
जाएंगे, ऐसा लगता था. No windows were there, no ventilator, no windows, no provision of air and light in those homes, and crowded with the families. Very crowded area was there. Why? Because the human and animal, they are living at the same place at the same time, and this was a prehistoric state. Prehistoric state means this have been just going on since last so many years. The family started living over there. तब से यही कंडीशन थी. तो यही चीज़ होगा जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे एनिमल है, तो एनिमल का भी जो डंग है एंड उनका भी जितना भी वेस्टेज है वो भी वहीं रहता था. नो ड्रेनेज, नो सीवेज एंड नो ओपन एरिया, नो विंडोज, नथिंग वॉज देयर. एंड इन दिस कंडीशन नियर अबाउट thousands of the people were living over there, and they all were bengal maker. क्या करते थे वो सारे ही लोग थे, वो क्या बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built slab. In the one part of it, thatched with dead grass, and is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaf. अब वो बताता है कि वो घर पहुंच गए हैं एंड ऐसे ही एक घर में, मतलब मुकेश का जो घर था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, कुछ अलग नहीं था. वहाँ पे भी जो वॉल्स थी, जो सीलिंग थी, वो बहुत ज़्यादा मीन्स बुरी कंडीशन में थी. एंड देन एज दे रीच्ड ओवर देयर, मुकेश ने उस वुबली आयरन डोर को अपने पैरों के साथ खोला. बैंग इज कॉल्ड हिट्स, ठीक है, जोर से उसने मारा. हाफ built shack is called a roughly built hut. Thatched is called covered with the dry grass, जिसको हम बोलते हैं ना छप्पर, जो सूखी घास से बनाया जाता है, that is called thatched. Vessel is called container of the cooking food, जो बड़ा सा होता है, भगोना, पतीला या पैन जो होता है, that is. Sizzling is called make a hissing sound when frying, जब भी आप छौंक की जो आवाज़ होती है, जैसे ही हम डालते हैं प्याज वगैरह कुछ डालते हैं, that is called sizzling sound. Platters means large plates. Chopped is called cutting finely, and frail is called very thin or weak. तो जब वो पहुंच जाते हैं, मुकेश एक जोर से इस तरह से पैर मारता है, दरवाज़ा खुल जाता है. आयरन का डोर था, वो भी बहुत वूबली था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी वो डोर गिर जाएगा. एंड ही पुशेस टू ओपन, वो धक्का देता है, आगे खुल जाता है. एंड दे एंटर हाफ बिल्ट शेक, जो आधा बना हुआ रफली बिल्ट जो शेक था, हट था, वो उसके अंदर चले जाते हैं. इन वन पार्ट ऑफ द थैट, अब यहाँ पर अनीस जंग हैज डिस्क्राइब द condition, okay, the inside condition we can say of those huts. बाहर का तो उन्होंने describe किया है कि the way she passed, which kind of condition was there. अब now she was describing the inside the hut. So half of the part of this hut that was covered with the dead grass, means that वो छप्पर पड़ा हुआ था half part में, and it's a firewood stove over which sit. Firewood stove जो लकड़ी से जलता है, this is called firewood stove, चूल्हा बोल सकते हो आप इसको. तो यह वहाँ पर रखा हुआ था और उसके ऊपर बहुत बड़ा सा एक बर्तन रखा हुआ था, पतीला रखा हुआ था. आप देख सकते हो टिन की ये इस तरह से क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, कहीं पे छप्पर पड़ा हुआ है, इसी तरह के वहाँ पे लोग जो थे घर थे, और एक बड़ा सा वो पतीला रखा हुआ था. एंड उसमें क्या हो रहा था, कुछ आवाज़ आ रही थी. स्पिनच इज कॉल्ड पालक, जो पालक ग्रीन वेजिटेबल होती है, दैट इज़ कॉल्ड. तो वहाँ पर उसकी लीव्स, उसकी पत्तियाँ पड़ी हुई थी और उनके छौंकने, उसकी कुकिंग की आवाज़ आ रही थी. ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर आ मोर चॉप्ड वेजिटेबल, अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. थ्रू आइज फिल्ड विद द स्मोक शी स्माइल्स. अब वो बताती हैं कि जो नीचे ज़मीन पर कुछ एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेट्स रखी हुई थी. एल्यूमिनियम इज़ वन ऑफ द मेटल दैट इज़ चीप मेटल that can come, means it is rather the cheapest metal among all other. So वहाँ पे एल्युमिनियम की प्लेट में कुछ सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ कटी हुई रखी थी. And now introduced one young frail, she was very weak and thin, and she was cooking the food for the entire family. We can say she was busy in cooking dinner. वो सबके लिए खाना बना रही थी. And for this means as Anis enters, because of the smoke, the eyes were not open, means she was not able to open her eyes properly, क्योंकि जब चूल्हा जलता है तो धुआं बहुत निकलता है उसमें से, तो वो जो धुआं था वो स्मोक था, that was going in her eyes, but even then she showed a smile, वो हंसती है. तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि किस तरह से वो उसकी अपनी घर की कंडीशन बता रहा है, और कंडीशन आई एम सो सॉरी, वो अनीस जंग बता रही हैं एक तरह से इनडायरेक्टली मुकेश के घर की कंडीशन. मुकेश उनको अपने घर लेकर आया है, वहाँ पर उन्होंने घर के बाहर की और अंदर की क्या चीज़ है
कंडीशन है वो अभी बताई है. एंड वन वुमेन वॉज इंट्रोड्यूस, मुकेश के घर के अंदर हैं जो वो. मुकेश एल्डर ब्रदर. अभी ये दूसरा कैरेक्टर आया है मुकेश के अलावा और कौन है वहाँ पे, वो एक उसका बड़ा भाई है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of the three men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. तो वो जो इंट्रोड्यूस हुई है, जो एक फ्रेल वुमेन है, वो कौन है, घर की बहू है, यानी कि मुकेश का जो भाई है उसकी वाइफ है. तो टू कैरेक्टर्स आर देयर एंड शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. डॉटर इन लॉ इज कॉल्ड बहू, यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश. वो घर की बहू है और वही इंचार्ज है. इंचार्ज इज कॉल्ड, शी इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ऑल थ्री मैन्स. थ्री मैन्स कौन कौन है, वन हर हस्बैंड मुकेश एंड उनके फादर, यानी कि उसके फादर इन लॉ. वैन द ओल्डर मैन यहाँ पे आया है किसके लिए, फादर के लिए, ठीक है. मुकेश के जो फादर हैं उसके लिए आया है यहाँ पर. तो जैसे ही वो अंदर आते हैं, देन द बहू, जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, वो क्या होती है, वो विड्रॉस इज कॉल्ड, चली जाती है, पीछे छुप जाना, ठीक है. बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट, शी इज वर्दी एंड सो इज रिस्पेक्टेड. विड्रॉस मीन्स गोज बैक एंड वेल इज कॉल्ड फैब्रिक दैट कवर्स वुमेन फेस, या आप घूंघट भी बोल सकते हो, ठीक है. तो जैसे ही मुकेश के फादर आते हैं, वैसे ही वो जो बहू है वो पीछे छुप जाती है. किसके पीछे छुप जाती है, एक ब्रोकन वॉल है, वहाँ पे एक टूटी हुई छोटी सी वॉल है और उसके पीछे छुपकर वो अपना घूंघट है वो आगे कर लेती है, मतलब वो घूंघट लगा लेती है. तो ये एक कस्टम है इंडिया में, जो आप जानते हो कि whenever the elderly person enters the house, then all the daughter-in-laws, they used to cover their veil. It still means in we can say na, in practice in so many अदर पार्ट्स ऑफ द विलेजेस, सिटीज़ में तो अब नहीं रहा है इतना ज़्यादा, बट कहीं कहीं पे है, इनसाइड द होम इट इज़ देयर, बट विलेज में काफ़ी जगह ये अभी भी है घूंघट करना. As custom demands, daughter-in-laws must veil their face before maid elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of the hard labor, first as a tailor, then bangle maker, he has failed to renovate a house. Send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. जैसे कि custom है, tradition है, वो जो डिमांड करता है, impoverished is called very poor and renovate is called repair. तो यहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो डिमांड करता है, किस चीज़ की डिमांड करता है, कि भाई जो डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, वो हमेशा उनको वेल, यहाँ पे वेल का मतलब है कवर, ठीक है. वहाँ पे वेल का मतलब था घूंघट, यहाँ पे कवर कर लेना, इट्स अ वर्ब हियर एंड वहाँ पर वो नाउन है. वो अपना फेस को कवर कर लेती हैं जैसे ही मेल एल्डर, जो बड़े हैं, घर के बड़े आते हैं वो. एंड इन दिस केस जो एल्डर है, ये एल्डर किसके लिए आया है, अगेन ये एल्डर आया है मुकेश के फादर के लिए. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुकेश के फादर के बारे में भी बताया गया है कि जो मुकेश के फादर थे वो पहले क्या थे, वो उन्होंने बहुत हार्ड लेबर इज कॉल्ड हार्ड वर्क, उन्होंने पूरी लाइफ अपना बहुत हार्ड वर्क किया है. वो पहले एक टेलर थे, यानी कि कपड़े सिलते थे, बट बाद में ही हैज़ चेंज टू अ बैंगल मेकर, बट ही फेल्ड. Even then he failed to renovate a house. Renovate is called to rebuild. Means the condition of that house was not good, and he wanted to get it renovate or to rebuild, to fix all the things, but he was not able just because of the lack of money. And then two sons of the school. He was a Sanders school, means he has failed. यहाँ पे दोनों के लिए आया है, फेल हुआ है वो घर को सही कराने में और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में. मीन्स मुकेश एंड हिज एल्डर ब्रदर वर इलिटरेट, वो कभी स्कूल नहीं गए. व्हाट ही हैज़ डन इज टू जस्ट what he knows to teach them. Means he was knowing the art of bangle making, and the same thing he taught to his two sons. उसने सिखाई, and the art of making, this was the skill, this was the art that he gave to his two sons. Beside it, he gave nothing, and he was not able because of the lack of money. It is his karma, his destiny, said मुकेश grandmother. अब देखो यहाँ पे दो एक और आई हैं, मतलब अभी तक हमने देखा मुकेश के घर में कौन कौन है, मुकेश, उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी, उसके फादर, और ये हैं ग्रैंड मदर. तो दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टर. उनकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या बोलती हैं, इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी. मीन्स दीज ऑल थिंग्स आर कन्वेड टू अनीस जंग. अनीस जंग इज इंट्रोड्यूस्ड विद एनी वन, ठीक है, एंड शी वॉज हैविंग अ
talk with each and every member of Mukesh, and one by one she is asking and conversing with everyone, and they all are telling about their condition. To hear grandmother said that it is the karma, his destiny यहाँ पर आया है, मतलब उनकी किस्मत ही ऐसी है. यहाँ पर वो अपने बेटे के लिए यानी कि मुकेश के फादर के लिए बोल रही हैं. Who has watched her own husband go blind with the dust of the polishing glass of the bangles? Can a God-given lineage even ever be broken? She implies. Born in the caste of the bangle makers, they have seen nothing but bangles. Destiny is called fate and lineage is called a profession carried through the generations of the family. एक तरह से परंपरा आप बोल सकते हो जो बहुत पहले से चली आ रही है. तो उनकी दादी बोलती हैं कि भाई ये तो हमारा कर्म है, ये डेस्टिनी, यही हमारी किस्मत है. एंड शी वॉज जस्ट शेयरिंग अनदर इंसिडेंट दैट हाउ शी लॉस्ट हर हस्बैंड. मतलब मुकेश के जो ग्रैंडफादर थे, ही लॉस्ट हिज आईज बिकॉज ऑफ दिस पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास. जब पॉलिश करते हैं ग्लास को एक बहुत वी कैन से ना शार्प सरफेस पे, तो जो ग्लास की जो धूल है, एक तरह से डस्ट ऑफ द ग्लास, वो है तो कांच ही, जब वो उड़ता है तो इट विल डेफिनेटली गो इन आईज एज वेल एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल. एंड एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग थ्रू आउट द डे इन द डार्क एंड दैट वी कैन से ना क्लोज्ड रूम, दैट विल ऑल्सो इफेक्ट. तो वो बहुत जल्दी जो थे उन्होंने अपनी आंखें लूज कर दी थी, मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो अंधे हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस पॉलिशिंग ऑफ द बैंगल्स. एंड वो अब बोलती हैं कि ये जो परंपरा है जो हमें दी है गॉड ने, ये कभी भी क्या टूटेगी. मीन्स she has been suffering for so many years. Throughout of her life she has suffered, and that's why she was just asking this thing. Means Anish Jung was just another ray of hope. जो वो लोग सोच रहे थे कि भाई कोई आया है हमारे घर में, मे बी she would do anything for them. तो वो कह रही थी कि क्या ये चीज़ जो है जो हमको इतने ट्रबल दे रही है वो कभी भी ख़त्म होगी. She implies born caste, यहाँ पे she आया है ग्रैंड मदर के लिए, अभी उसकी ग्रैंड मदर ही बोल रही है मुकेश की, उनके लिए आया है. नाउ दिस कास्ट ऑफ द बैंगल मेकर्स, बॉर्न मतलब क्या चीज़ वो चाहती है कि भाई एक के बाद एक जो हम लोग जनरेशन पे जनरेशन आ रही है और उन सबको यही काम करना पड़ रहा है. दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, मतलब द ग्रैंड मदर, देन हिज सन, देन मुकेश, जितनी भी लोग हैं सबको यही चीज़ चली आ रही है और सब लोग यही कर रहे हैं. कोई भी जो नया जनरेशन आता है हम उसको यही काम सिखाते हैं. वैन दिस लीनेज विल बी ब्रोकन, कब ये टूटेगा. तो यहाँ पे उनकी हेल्पलेसनेस साफ देखी जा सकती है. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad is spirals of the Bengal, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in the unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts and pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Yard is called the open area of the house. Mounds means heaps या ढेर बोल सकते हो आप. Unkept is called not taken care of, means not in a very means unorganized manner, गलत तरीके से, गंदे तरीके से रखना. Piled again, kept one on the top of other, ढेर लगाना. Shanty town means a town that is full of the small roughly built huts. ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वो बता रही हैं कि हर घर में, फिरोजाबाद का हर घर, हर आंगन, हर स्ट्रीट, जितनी भी जो भी सड़क है, सब किससे भरी हुई है, बैंगल्स से भरी हुई है. वहाँ पे 99% जो लोग हैं वो यही काम करते हैं. स्पाइरल ऑफ द बैंगल्स, जो एक जाल है बैंगल्स का, वो किस तरह का है, मतलब यहाँ पे कलर्स बताए गए हैं. जो गोल्ड कलर है वो सन से कंपेयर किया गया है, ग्रीन कलर को ग्रीन फील्ड से कंपेयर किया गया है कि जो ग्रीन चूड़ियाँ हैं वो ग्रीन कलर के जो फील्ड है उसकी तरह हैं. ब्लू कलर है वो रॉयल है, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, हर कलर है. जो 7 रंग होते हैं सतरंगी जो रेनबो में होते हैं, हर कलर की चूड़ियाँ वहाँ पर हैं. और वो कैसे पड़ी हुई हैं, वो पड़ी हुई हैं माउंट, ढेर में पड़ी हुई हैं, यार्ड्स यानी कि खुली जगह पे पड़ी हुई हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में. उनके पास जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनका जो सामान है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है. पाइल्ड ऑन 4-wheeled carts, और जब वो चूड़ियाँ बन जाती हैं तो जो हैंड कार्ट का मतलब आप ठेला बोल सकते हो, ठीक है. तो जो ठेला है 4-wheel जो हैंड कार्ट है, वहाँ पर इन चूड़ियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है. यू मस्ट हैव सीन द बैंगल वेंडर्स और हॉकर्स, दे आर पासिंग फ्रॉम द लेन्स. चूड़ियाँ ले लो, वैसे ही वो बताया जा रहा है कि एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है. और फिर जो यंग मैन हैं, जो जवान लोग हैं वहाँ के, दे पुश्ड दैट हैंड कार्ट्स फ्रॉम दैट स्टिंकी एंड नैरो लेन
lanes towards the shanty town. वो बाहर बाजार की तरफ उनको बेचने के लिए चले जाते हैं. उस लेन जो बहुत सकरी है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, वहाँ से वो बाहर ले जाते हैं. तो this was the information about the profession, how the bangle making has done and who are there linked with them, how after bangle making, how they are following the procedure to just take them towards the market. And in dark hutments, next to lines of the flame, flickering oil lamps, sits boys and girls with their father and mothers, welding pieces of the colored glass into the circles of the bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. यहाँ पे बताया गया, अब क्या बताया कि किस तरह से each and every family member is engaged in this work. Flickering is called unsteady like, moving like, हिलने वाली, ठीक है, and welding is called joining. तो यहाँ पे बताया गया है जहाँ जिस डार्क हट में, जिस हट में जो बहुत ज़्यादा डार्क है, जहाँ पे रोशनी नहीं है, वहाँ पर नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स, एक लाइन ऑफ द फ्लेम्स मतलब वहाँ पे जो इस तरह की आपको जो लाइट दिख रही है, ये इस तरह से, क्योंकि बैंगल का जो प्रोसेस है वो लाइट में आग से जो छोटी छोटी हैं उनमें किया जाता है और फिर भट्टी के पास बैठ के उनको सोल्ड किया जाता है या वेल्ड किया जाता है. तो वहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं. जो ऑयल लैंप है जो वहाँ पे जल रही हैं, उनकी जो लाइट है वो बहुत इमूवेबल है. मतलब जो लाइट अगर फ्लिकर करेगी तो ऑब्वियसली इट विल अगैन पुट अ इल इफेक्ट ऑन योर आइज. तो यहाँ पे सिट बॉयज, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, जो घर के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, सभी वो काम कर रहे हैं और वो काम उनको उनके फादर और मदर ने सिखाया है. दे व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली, दे आर वेल्डिंग the pieces of colored glass. So many colored glass, as you can see, glasses के पीस पड़े हुए हैं and they are coloring, they are joining them. They are joining them with the help of that flickering lights. In the flickering light, मतलब बहुत छोटी सी धीमी सी रोशनी में वो उनको जोड़ रहे हैं, उनको join कर रहे हैं. And circles of the bangle, मतलब ये जो देख रहे हैं आपको, ये जो circles दिख रहे हैं, इनको आपस में जोड़ा जाता है. आपने देखा होगा जब आप चूड़ी देखोगे उसमें एक joining का निशान होता है, एक जगह पे एक पॉइंट पे वो join होता है, तो वो वही कर रहे हैं. नाउ जो बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं या फैमिली का कोई भी मेंबर, उन सब लोगों की जो आईज हैं वो एडजस्ट हो गई हैं उस डार्क चीज में, बिकॉज थ्रू आउट द डे, ड्यूरिंग द इवनिंग, इवन एट द नाइट टाइम, दे यूज्ड टू वर्क इन दैट डार्क रूम, इन दैट डार्क रूम ओनली. तो उनकी जो आईज हैं वो एडजस्ट हो गई हैं उस डार्क एटमॉस्फियर के. सो वेन एवर दे कम आउट इन द लाइट, दे आर नॉट एबल to just bear the sunlight. Why? Because they are not having this kind of strength left in their eyes. And इसी वजह से वो बहुत जल्दी, मतलब अडल्ट भी नहीं हो पाते हैं और वो उनकी आंखें अपनी लूज कर देते हैं, वो बहुत जल्दी अंधे हो जाते हैं. तो अब देख सकते हो ये जो ग्लास बैंगल्स हैं, इनका जो मेकिंग प्रोसेस है, इट इज़ सो हजार्डियस, इन सो हजार्डियस कंडीशन दे आर मेकिंग, एंड इवन द चिल्ड्रन, ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर एंगेज्ड इन दिस वर्क. हम तो बहुत आराम से मना कर देते, नहीं ये चूड़ी अच्छी नहीं है, कम करो या ये करो, बट द स्टोरी behind the making of each and every bangle is very horrible. Savita, the young girl of the drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering the pieces of the glass as her hand move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. Drab is called colorless. We can say just very जो वैसी हो जाती है ना, discolored हो जाती हैं, that is called soldering. Again it's called joining, that is welding. Tongs is called a tool with two movable joined at one end, जिसको आप चिमटा बोल सकते हो. That sanctity is called the state of being holy, पवित्रता, and auspiciousness again a good omen या अच्छा शगुन जिसको बोलते हैं, that is. अब यहाँ पे देखो एक और कैरेक्टर यूज हुआ है, सविता. तो हम बोल सकते हैं पहले उन्होंने हमें साहिब का स्टोरी सुनाया, फिर मुकेश, और हमको इंट्रोड्यूस हुआ है सविता, द वन गर्ल, एंड शी वॉज बियरिंग अ डिसकलर्ड पिंक ड्रेस. उसने पहना हुआ है, एंड शी वॉज सिटिंग एल्डरली वुमेन, वो अपनी दादी या माँ के साथ बैठी हुई है, एंड शी वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क, मीन्स जॉइनिंग ऑफ द ग्लास बैंगल्स. एंड एज अ हंस मूव, इतनी मैकेनिकली, इतनी
ऐसे बिल्कुल जैसे मशीन काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही उसके हाथ चल रहे हैं. मतलब दे बिकेम मास्टर्ड इन दिस बैंगल मेकिंग प्रोसेस. एंड ऐसा लग रहा है कि कोई मशीन भी क्या काम करेगी जितनी मैकेनिकली उसके हाथ चल रहे हैं. आई वंडर, यहाँ पे अगेन आई एज कम फॉर अनीस जंग, इफ शी नोज, क्या उसको पता है द होलीनेस मीन्स द स्टेट द वर्थ ऑफ दिस बेंगल. जो वो बना रही है उसको इनकी पवित्रता का पता है क्या? मतलब जो सविता छोटी सी बच्ची है वो नहीं जानती है कि शी इज मेकिंग, उसके लिए सिर्फ ये एक काम है कि उसको ये काम खत्म करना है. बट व्हाट इज एक्चुअल द मीनिंग, द होलीनेस ऑफ फॉर दैट बैंगल शी हेल्प्स मेक, जो वो बनाने में मदद कर रही है. ये किस चीज़ की सिंबल है? ये इंडियन सुहाग, जो वुमेन सुहाग है उसका ये सिंबल है, प्रतीक है. एंड इट इज़ ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिजेस. शादियों के लिए ये बहुत अच्छा शगुन है. जब शादी हो जाती है तो चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है और एक अच्छा शगुन होता है. लेकिन ये जो चीज़ है उस छोटी सी बच्ची सविता को नहीं पता है, जो वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही मैकेनिकली उन बैंगल्स को बना रही है. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride, like an old woman beside her who became one many years ago. अब उसको एक बार जरूर पता चलेगा. It will dawn on her suddenly. अचानक से उस पर ये चीज आएगी, अचानक से उसको पता चलेगा. जब एक दिन, dawn on her is called she realize, जब उसको चीज रियलाइज होगी, पता चलेगी. ड्राफ्ट इज कॉल्ड कवर्ड. तो वो उसको पता चलेगा जब उसको उसके ऊपर भी लाल घूंघट, वेल मैंने बताया था घूंघट, जब उसको लाल घूंघट पहनाया जाएगा. लाल घूंघट का मतलब जब उसकी शादी होगी, जब वो पहनेगी. हर हैंड्स डाइड, रेड डाइड, उसके जो हाथ हैं उसमें हिना लगाई जाएगी. हिना इज कॉल्ड मेहंदी, आपको पता है. और उससे उसके हाथ जो लाल हो जाएंगे और उसके हाथों में लाल कलर की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी. एंड देन शी विल बिकम अ ब्राइड, और वो एक दुल्हन बन जाएगी. कैसी दुल्हन बन जाएगी? जो उसके पास जो वुमेन बैठी हुई है, मे बी हर दादी और मदर जो भी बैठी हुई हैं, उनको जो बहुत सालों पहले किया गया था, मतलब बहुत सालों पहले उनकी शादी हुई थी. एंड नाउ वन डे सविता विल ऑल्सो गेट मैरिड, एंड दिस ऑल थिंग she is going to be realized, and that time she will know the real importance of these bangles that she was mechanically making today. तब उसको जाकर ये पता चलेगा. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. She has not enjoyed even a full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowering beard, says, I know nothing except bangle making. All I have done is to make a house for the family to live in. एक वक्त शेर बोल सकते हो आप. A unit of the measuring is quantity. मेजरिंग क्वांटिटी. रीप्ड इज कॉल्ड रिसीव्ड एज अ बेनिफिट, मिलना. तो यहाँ पर वो एल्डरली वुमेन बोलती है कि भाई जो उनके हाथ में भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उनके आंखों में चमक नहीं है. यानी कि चूड़ियों में तो चमक है बट आंखों की चमक कहीं खो गई है इस पॉवर्टी की वजह से. और वो ये बताती हैं कि भाई पूरी लाइफ हो गई लेकिन उन्होंने एक मील भी अच्छे से नहीं खाया. एंड वॉइस ड्रेन, उनकी आवाज़ जो है उसमें बिल्कुल भी जॉय नहीं है. जॉय बिल्कुल ड्रेन्ड है, आउट है. एंड वो बता रही हैं कि हम लोगों ने आज तक, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक बार भी भर पेट खाना नहीं खाया. मतलब उनको हमेशा जो खाना मिलता है दैट इज़ इन वेरी लिटिल अमाउंट. कभी भी आज तक उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया. और शी हैज़ रीप्ड, यही चीज़ उसने रिसीव की है. क्या रिसीव की है? ये पॉवर्टी. दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, जो उन्होंने रिसीव की है पूरी ज़िंदगी. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, जो उनका हस्बैंड है यानी कि सविता के पास जो मदर बैठी हुई हैं वो बताती हैं. और उनके जो हस्बैंड हैं, एन ओल्ड मैन विद फ्लावरिंग बीट्स. फ्लावरिंग बीट्स मतलब बोल सकते हो बड़ी सी उनकी दाढ़ी है. वो क्या बोलते हैं कि मुझे सिर्फ बैंगल मेकिंग के अलावा और कुछ नहीं आता. आई नो नथिंग, मुझे सिर्फ यही आता है. एंड मैंने पूरी लाइफ में क्या दिया है? ये घर जहाँ पे हम रह रहे हैं. मतलब पूरी लाइफ में वो क्या कर पाए बैंगल मेकिंग से? ये घर बनाने के लिए जो उन्होंने सेविंग किया होगा वो कहाँ से आया होगा? वैन दे आर कटिंग their meals. भरपेट खाना क्यों नहीं खाया? कि मे बी दे कैन डू समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे हैव जस्ट बिल्ट अ हाउस फॉर द फैमिली. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. यहाँ पे सविता की फैमिली को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है जिससे अनीस जंग मिली है. नाउ हेयरिंग हिम one wonders
if he has achieved what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head. कम से कम इतना तो है कि उनको घर की छत मिली है, नहीं तो इतनी पॉवर्टी में इस काम से कोई भी अपने लिए घर तक नहीं बना पाता है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young man echo the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of the mind-numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream. Rings is called a sound which is repeated. Echo is called again a repeat. गूंज बोलते हैं जिसको. Lament means complaint. Mind-numbing is called boring. And toil is called physical hard work done for a living. बहुत ज़्यादा काम करना. अब यहाँ पर उसको सुनकर ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने अपना घर बना लिया. नहीं तो कुछ लोग तो बैंगल मेकिंग इतने कम अर्निंग में आप घर भी नहीं बना सकते हो. नाउ द क्राई हम बोल सकते हैं एक तरह से पेन या सैडनेस ऑफ नॉट हैविंग मनी. किसी के पास वहाँ पे पैसा नहीं है और ये जो चीज़ है जो बिजनेस को जारी रखने के लिए, गोइंग ऑन करने के लिए, कौन सा बिजनेस, चूड़ी बनाने का बिजनेस जारी रखने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं है. मतलब कैसे भी करके वो काम कर रहे हैं. एंड दे आर नॉट हैविंग इनफ टू ईट. उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है. रिंग्स इन एवरी होम. रिंग्स मतलब साउंड दैट इज रिपीटेड. मतलब हर घर की यही हालत है. वट एवर द होम शी हैज़ विजिटेड, मुकेश होम, सविता होम, बट शी वॉज टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन दैट सर्वे, जर्नल इंटरेक्शन डन विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ मुकेश एंड सविता, दैट इवन ईच एंड एवरी होम ऑफ फिरोजाबाद इज suffering with the same thing. And here the young man echo, जो young man है, वहाँ के जो जवान लोग हैं, वो echo मतलब उनके वो भी बार बार रिपीट करते हैं इस complaint को of their elders. मतलब ये जो elders के पास उनका जो काम है वही उनको भी करना पड़ रहा है. यही ये काम ही उनके पास वापस आता है. They are not allowed to do something else and this is their complaint. Little has moved with time. बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है. अगर हम देखें हमारी सिटी लाइफ, दिस इज ड्रास्टिकली चेंज्ड. इफ यू विल जस्ट गो एट वन प्लेस, विजिट आफ्टर अ मंथ, जस्ट इवन दैन you can just have so many new things captures the market, but the condition of these people remain same. इतने सालों में बहुत थोड़ा सा चेंज आया है ऐसा लगता है फिरोजाबाद में. years of the mind numbing, the boring जो काम है, जो हार्ड वर्क है, उसने ख़त्म कर दिया है. क्या चीज़? इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम. दे आर नॉट एबल टू ड्रीम. वाई? दे आर नॉट हैविंग द टाइम. दे टायर्ड सो मच. उनको आराम करने का समय नहीं मिलता, उनको खाने के लिए प्रॉपर नहीं मिलता, अच्छे कपड़े नहीं मिलते. हाउ दे कैन ड्रीम? उनके लिए तो वही ड्रीम है जब उनको अच्छा सा खाना मिल जाए. दैट इज द ड्रीम फॉर दैम एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैविंग द थिंग फॉर इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मतलब अपनी इच्छा से कोई काम करना, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं है. उनको अपनी इच्छा को जानने का, अपने ड्रीम को जानने का समय ही नहीं है. वो इस चीज़ में कभी हुए ही नहीं. तो जो वहाँ के लोग हैं वो हमेशा इसी पॉवर्टी में रहते हैं एंड वो ये जो पॉवर्टी की जो कंडीशन है वो हमेशा बनी रहती है. एंड आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें और किस किस का हाथ है या और क्या रीज़न हो सकता है. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू कॉपरेटिव? I ask a group of the young men who have fallen into the vicious circle of the middleman who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are one who will be hauled up by the police, beaten up and dragged to jail for doing something illegal. They say vicious is called cruel and hauled up is called taken away. अब वो बोलती हैं, जब वो एक ग्रुप ऑफ द यंग बॉय से मिलती हैं, वहाँ पे सारे लोग होते हैं, भाई तुम लोग कोई कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हो, साथ मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ या कुछ काम करो. देन दे हैव उन्होंने बताया कि वी आर फॉलन इनटू मींस वी आर दे वो किस में पड़ गए हैं? क्रूअल लोग हैं. जितने भी क्रूअल या एजुकेटेड, जो एजुकेटेड लोग हैं वही दूसरों को टॉर्चर करना जानते हैं. तो उन्होंने कहा कि जो विशियस सर्कल है, जो क्रूअल मैन का जो सर्कल है, वो जो मिडिल मैन है, मतलब बीच के जो आदमी हैं, उन्होंने हमारे फादर को, हमारे फोर फादर को ट्रैप मतलब फंसा के रखा हुआ है. आपने लोगों ने सुना होगा इस तरह के ज़मींदार जो हैं, जो इलीगली दे आर कैप्चरिंग द लैंड ऑफ द पुअर फार्मर्स एंड दे कीप ऑन पेइंग द इंटरेस्ट टिल द ईयर्स, जनरेशन बाय जनरेशन. द सेम थिंग इज हियर. दे आर इलिटरेट एंड दैट्स व्हाई द लिटरेट पीपल आर हैविंग द लाइसेंस to just having this entorchment on them. वो किस तरह से उनको टॉर्चर करते हैं, किस तरह से उनको फंसा लेते हैं अपने जाल में, वो बताया गया है.
उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने उनके अनीस जंग के क्वेश्चन का आंसर दिया कि अगर हम ऑर्गेनाइज होते भी हैं तो हमको पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं लोगों से मिली हुई है, पुलिस मैन आर ऑल्सो मीन्स अ very vast circle of the police are like this only. They are not least bother about the condition, about the troubles of the poor people. उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते भी हैं तो we are taken by the police, फिर वो हमको मारती पीटती है, हमको बहुत बुरी तरह से घसीटती है और जेल में डाल देती है और कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देती है कि you have done this illegal thing and now you will be here in this jail. Nobody is having the courage or money or the information about their rights, and there are no educated people are there जो जाएं वहाँ पे और बोलें कि भाई ऐसा नहीं है, ये नहीं है. गरीब लोग हैं, कोई भी कभी भी आकर उन पे कुछ भी अत्याचार कर सकता है, कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है. And this is the thing, this was the answer given by the young man's to Anees Jung when she asked that why are you not organizing the committee. उन्होंने कहा कि अगर हम बनाते भी हैं तो हमको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर हमको जेल में डाल देती है. And this is the reality. There is a leader among them. No one could help them see things differently and their father are as tired as they are. उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे लीडर हैं, उन लोगों के लीडर होते हैं, वो लीडर हैं, वो सबसे मिले हुए होते हैं. And that leader they could help them to see the thing differently. उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं है ऐसा वहाँ पे, क्योंकि लीडर होने के लिए आपको अपने राइट्स के लिए अवेयर होना ज़रूरी है, एजुकेटेड होना ज़रूरी है, बट वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है. And then they are looking their things differently. Their fathers are as tired as they are. उनके जो फादर हैं वो भी उनसे बहुत तंग आ गए हैं जैसे कि वो हैं. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct words. That is one at the family caught in the web of the poverty. अब यहाँ पे spiral का मतलब है a never ending process. इस तरह का जो spiral होता है a never ending process, वो चलता ही रहता है. Apathy is called lack of concern, consideration. Greed is called selfish desire and distinct is called separate, अलग कर देना. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि they talk endlessly, वो endlessly वो बातें कर सकते हैं इस बारे में. And that moves from पॉवर्टी टू एपैथी. पहले उन्होंने पॉवर्टी की बातें की, उसके बाद एपैथी मतलब लैक ऑफ कंसर्न. नोबडी इज पेइंग अटेंशन ऑन दैम, नोबडी इज हैविंग कंसिडरेशन और कंसर्न फॉर दैम. किसी को भी उनकी चिंता नहीं है. अगर आप उनसे बातें करोगे दे आर हैविंग सो मच थिंग टू टेल टू कन्वे, क्योंकि उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी उनकी हालत को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है. एंड हियर अगर हम पॉवर्टी के बाद फिर हम कहाँ पहुँच जाते हैं, अपैथी पे, जहाँ पे कोई भी चिंता नहीं करता. उसके बाद ग्रीड, जो पर्सन है जो सेल्फिश डिज़ायर के लिए उनका यूज़ करते हैं. एंड देन दे कम ऑन द इनजस्टिस, के उनके साथ अल्टीमेटली इनजस्टिस किसके साथ होता है, गरीब लोगों के साथ. लिसनिंग टू दैम, उनको सुनने के बाद अनीस जंग को ऐसा लगा कि वो एक दो अलग अलग वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रही हैं, दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है. एक तो वो है जो उनकी फैमिली है, जो कि एक तरह से जाल है किसका, पॉवर्टी का, उसमें फंसी हुई है, वहाँ से नहीं निकल सकती. एक तो उन्होंने ये वर्ड देखा है, poverty, injustice, apathy and greed, these all are the thing they are trapped in. वो इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं. तो एक तो जो वर्ड हुआ वो उनकी फैमिली का हुआ. and then that is burdened by the stigma of the caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars and the middleman, the policeman, the keepers of the law and the bureaucrats and the politicians. Stigma is called dishonor and bureaucrats we can tell about the government officials. तो वो ये बताती हैं एक दो जो वर्ड है वो इनकी फैमिली का है, जो बर्डन है, जो एक तरह से उन पे बर्डन है, एक तरह से उनका डिसऑनर है कि उन्होंने इस कास्ट में जन्म लिया. मतलब उन्होंने बैंगल मेकर के घर जन्म लिया है तो उनको वही काम करना पड़ेगा. दे आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग एल्स, उनको और कुछ भी करने की वी कैन से द परमिशन नहीं है. और एक दूसरा कौन सा वर्ड है, वो विशियस, वो क्रूअल पीपल का. उसमें कौन कौन है, साहूकार है, मिडिल मैन है, पुलिसमैन, ऑल द कीपर्स ऑफ द लॉ, यानी कि जितने भी डिफेंस के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी ऑफिशियल्स हैं और सारे पॉलिटिशियन, ये सब आपस में मिले हुए हैं. एंड फॉर कंप्लीटिंग देयर ओन बेनिफिट एडवांटेजेस दे टेक और दे डू डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज पुअर पीपल. वो सब इनको यूज़ करते हैं. तो ये जितने भी लोग हैं ये अपने फ़ायदे के लिए जो पुअर पीपल हैं इनका यूज़ करते हैं. और ये सारी चीज़ें अनीस जंग को समझ में आती हैं. उनको दो अलग अलग वर्ड साफ दिखाई दे रहे हैं.
Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he aware, he accepts it naturally, and his father. To be anything else would mean to dare. Imposed is called force upon, baggage is called burden, and dare means to do something courageous, हिम्मत रखना. तो वो ये बता रही हैं कि ये सारी चीज़ें ये ज़बरदस्ती उनको फोर्स की गई, ये बर्डन डाला गया है उनके ऊपर जिसको वो चाह कर भी नहीं हटा सकते. किस चीज़ का बर्डन? टू जस्ट एक्सेप्ट और टू वर्क in the same profession. Why? Because they have taken birth, they are born in the bangle makers family. वो इसको नहीं हटा सकते हैं. Now अगर वो aware हो भी जाते हैं, he is aware, he accepted as naturally, वो इसको accept कर लेते हैं कि भाई हमको यही करना है, as his father, जैसे कि उनके father कर रहे हैं. और अगर वो कुछ और करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी हिम्मत हो रही है. और ये जो जितने भी मिडिल मैन, जो विशियस पीपल का सर्कल है, वो कैसे भी करके इनको अलाउ ही नहीं करने देता, इनको समाज में आगे पढ़ने ही नहीं देता है. बहुत सारी चीज़ें आपने सुना होगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्किल चिल्ड्रन होते हैं जो बाय बर्थ दे आर मीन्स ग्रेटली, मीन्स दे आर very distinctive from rest of the other, they are amazing, but how can they know their skill when they are not allowed to do anything else besides bangle making? And that's why वो अगर कुछ बोलते हैं कि अगर हम कुछ करने की हिम्मत भी करते हैं तो we are caught by this vicious circle. And daring is not a part of growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn. यहाँ पर जो dare यानी कि जो हिम्मत रखना है किसी के लिए भी, तो daring is not a part of the growing up. जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो वो तो physically, naturally है, but daring is called, जो courage है वो उसके साथ नहीं आ पा रही है because so many restrictions are there and one is the stigma of poverty. But when I sense, जब उसको लगा कि हाँ, उसको दिख रहा है कि मुकेश wanted to do something, छोटा सा बच्चा है, वो बहुत खुशी से और बहुत कॉन्फिडेंस से वो बता रहा है कि मैं कुछ अलग करूँगा, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और उसके लिए मैं गैराज जाऊँगा, वहाँ पे काम करना सीखूँगा. And but the garage is a long way from his home. I'll walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. वो कहता है, जब अनीस जंग उसको बताती हैं कि भाई गैराज तो बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे? मुकेश कहता है, no, I will not compromise on anything. Once I have decided, I will walk. मैं जाऊंगा और वहाँ पे जाके सीखूंगा. अब अनीस जंग फिर से उससे एक ब्लीक क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? He has a small murmur. There is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream the cars that he sees hurtling down the street of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. Embarrassment is called a state of feeling shy. Murmur is called speaking in very low voice, and hurtling down is called moving around. अब यहाँ पे जब वो उससे पूछती हैं, वो थोड़ा सा कैसा शर्मा जाता है क्योंकि उसको पता है, उसने कहा नो. उसने कहा कि प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? उसने कहा नो. वाई? बिकॉज ही इज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, क्योंकि वो नीचे देख रहा था. स्टेयरिंग इज कॉल्ड लुकिंग एट वन प्लेस कंटिन्यूसली. एंड उसके जो छोटा सा मरमर यानी कि थोड़ी सी आवाज़ में, लो वॉइस में वो शाइनेस फील करता है, और ये जो शाइनेस है वो रिग्रेट में बदल जाती है, पछतावे में. वाई? बिकॉज प्लेन के बारे में वो नहीं सोच सकता, वो तो कार के बारे में सोच ले, उसको कंप्लीट कर ले, दैट इज going to be very big thing, a dream come true. So he is content to dream. Content is called satisfy. वो बिल्कुल satisfy है. उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो कार का ही ड्रीम है. Why? Because I am seeing the car, the street that is there outside of a colony. I am seeing every day. I am seeing the car going, moving around from here and there, and that's why I just want to be a car mechanic. And the few aeroplanes fly over Firozabad. वो क्या कहकर इस बात को टाल देता है, बहुत मासूमियत से बोल देता है, नहीं मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता. क्यों? क्योंकि बहुत कम प्लेन उड़ते हैं मेरे फिरोज़ाबाद से के ऊपर से. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बच्चे की छोटी अपनी समझ से वो किस तरह से एक राइटर को आंसर कर रहा है. राइटर has asked a question that is not having any base to be asked with the little child. कि उसने कहा कि भाई कार तो मैं रोज़ देखता हूँ, बहुत सारी हैं, तो मैं वही बनना चाहता हूँ क्योंकि हमारे फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेन उड़ते हैं. So this was the end of the second part as well. I hope you understood the explanation. I tried to give you the vocabulary as well. Now, one thing you have to do, just once go through the chapter yourself. This video will really help you. And if you will do the explanation yourself, it will really help you when are you facing the
questions, the unfinding solved question in your exam. Okay, so we'll meet next time with the next chapter. I'll try to bring next time the supplementary book, that is Vistas, and this time I'm taking a leave. Thank you.